Anyone? Yes. Today's session is about fearless public speaking. So, show why are you showing your fear? Turn on your cameras. There is nothing to be afraid of. Yes, everyone. Let me make you more energetic. I have a very good motivational quote for you all. कि वो खुश है ये सोचकर कि मेरी उड़ान कुछ कम है. वो खुश है ये सोचकर कि मेरी उड़ान कुछ कम है. वो वाकिफ नहीं मेरे हौसलों से, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है. So we all need that kind of josh in ourselves. Show your josh and turn on your cameras. Be fearless. Yes, everyone, very good. Divyan, Shankit, Dhriti, Ayush, Soumya, turn on your cameras. Sir will be with us in a very few minutes. Don't let your josh die down. Come on, everyone. Sujoy Das, Kanika, Ayush Raj, Soumya, Jyotir, Ankit, Divyansh. Turn on your cameras, guys. अच्छा लगता है. I think you need one more motivational quote for this. Only then you will turn on. So, I would like to say, okay, more people are joining in here. तो आप एक और शेर सुनिए कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है. सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है. मेरी मंजिल तो आकाश है, रास्ता मुझे खुद बनाना है. So turn on your cameras before that. Only then we will go to sky. Come on, everyone, and then we will take our limits to the sky. And we will disprove the cure that sky is not the limit. Yes, very good. Okay, in the meantime, you can also tell me about yourself. How many of you are afraid of public speaking? Raise your hands. Yes, I am. I raise my hand. I am afraid of public speaking. You can ping me up in the chat box. Phobia of public speaking. You are unable to express yourself. Yeah, and I am getting one announcement as well from StudNet. You can, in the meantime, keep telling me how many of you are fearful and how many of you are fearless. And in the meantime, I have an announcement for you. If any one of you are facing any problem regarding academics or regarding clearing a reappear or even regarding mentorship, then StudNet is here to help you all. And it is all free of cost. You will not be charged for any help. You have to pay something to us for that, and that is your time and dedication. Any help, any mentorship, you can contact us anytime. Our social media handles are there. You can contact us on Instagram, LinkedIn. So, sir will be joining us very shortly. We are still waiting for sir. He is just getting ready to, to amaze you all with his tips and tricks for fearless public speaking. So, how's the Josh, guys? How's the Josh? Hi, sir. Yes. Please don't turn on your Hi, mic sir. until asked for. Please maintain the decorum. You can tell me in the chat box, or you can raise your hands, or you can do some action, but please don't turn on the microphone, because if all will do that, and it will be a huge mess. Oh, seventh heaven. Josh is on seventh heaven.
I have heard about, Saat Jan Ka Saath. But what is the seventh heaven? Anyways, सातवें आसमान पर. so once more, how's the Josh? Is it really high? Is it on fire? Put up that fire emoji in the chat box. Put the chat box on fire. Let's see if you really have that emoji in your mobile phones. Yes, yes, they have. I think Mank don't have the fire emoji. Whoa, we are also getting some crackers, flowers. Hi. Yes, yes, that should be the energy. Huh? Abhay, what are you sending, Abhay? I can't get it. Hi, sir. Hi. Yeah, yeah. Come on. The chat box is already on fire. And in some moments, sir will be with us, and we all will have that energy within us, and this fire will be in our hearts, and you will be too motivated, and you will be having those tips and tricks so that you can contradict your inability of public speaking. You all will be fearless if you follow those tips and tricks. And yeah, I would like to repeat that announcement. If you are facing any problems regarding your academics or clearing a reappear or even regarding mentorship, you can reach out and it is free of cost. Our help is free of cost, and because we believe you can. We need your dedication, we need your time, and we will help you. And yeah, please turn on your cameras. Let us make this session more interactive. Be fearful, be fearless. Yeah, don't be fearful. Come on. This session is about fearless public speaking. Kindly turn on your cameras. Yeah, we are having more people here in. We are already 37 right now in the room. Let's see how many more are there to come. But before that, do you want to hear more quotes to rise your Josh? You want to hear more quotes? Yes, yes. But yeah, I need a majority in the chat box. I need a majority yes in the chat box. Divyansh, you can put it on a book or some stand. Yes, I can see. I can see they are. You are requesting for a cure, so I will be speaking up one more cure so that you can have more Josh in yourself. You can have more fire in yourself. Okay, let me remember of some good cure. If I can get some. Hmm. Yeah. One I got one. I got one. You want to listen it? Yeah. They are nodding their heads. Come on, guys. Yes. See again. Please don't turn on the mic because if all will turn on, then you will not understand anything, and it will be a huge mess. Oh shit! It slipped off my mind. Never mind. I will remind it again. Yeah. I got it. Listen it. Okay, everyone, be ready. This is a bumper quote. It is like this. Behold, everyone. Yogesh, Yeah. sir is here with us. Okay. So now Sir is with us. I will speak up the quote later, but now let us start with it. So hello everyone. This is Yogesh, your host for today. And today we are all going to have a very interactive session with an eminent personality, Mr. Aman Shukla, who is a coach at public speaking, lecturer at IIT and DU, and also a TEDx speaker. As we all know, the topic of our session is fearless public speaking. So, public speaking is not just speaking in front of a huge crowd. Public speaking is not just putting your views in front of others. Public speaking is not just consoling others. It is a blend of
content, emotions, and expressions. And fearless public speaking is a persuading gift which can be achieved by practice, perseverance, and dedication over time. Now, I want to ask you all, how many of you have already hosted or anchored any event in their life? Or even if you have recited anything on stage, a poem or anything. Yes, I can see that there are many who have spoken up on stage. But do you know that public speaking is not just speaking on stage? It can be putting up your views in your family decisions. It is expressing yourself in a society debate. And it is controlling the emotions of others over happy and sad moments. So, ladies and gentlemen, it is a wonderful day. We have Aman Shukla sir here on the platform with his guide on fearless public speaking. Very warm greetings, sir. We are very delighted to have you here. Hi, thank you How so are you, much. sir? I'm amazing. Was just waiting for it. अभी बस कॉल पे अपने दोस्त को बता ही रहा था. मैं कहा चिल भाई अभी थोड़ी देर बाद कॉल करो अभी अपनी स्पीच है तो मैंने कहा ठीक है. So I was just waiting for it पिछले 15 मिनट से. So yes, hi, I'm amazing. Glad to that I'm here and thank you so much for inviting me. Yes, Yogesh. Yes, sir. So now this platform is all yours. I won't speak anything now, sir. All right. So thank you so much for having me here, guys. Usually ये चीज एट द एंड ऑफ द सेशन बोली जाती है बट मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल दैट यू गाइज आर होस्टिंग सच अ सेशन रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है. सो यू गाइज आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा ना? बिकॉज आई एम ऑल्सो मोर कंफर्टेबल जब अपन मिक्स में बात करें क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा तुम्हें लेक्चर वाली फीलिंग आएगी तो ये लेक्चर जैसा कुछ नहीं. ठीक है. दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ फन इंटरेक्शन वेयर I may be helpful to solve some of your problems into public speaking, and I'll try my best to give you guys some of the tips and tricks which you can use to become a better speaker and everything, right? So before starting, sincere request to each and every one of you, यार कैमरास टर्न ऑन कर लो अपने, क्योंकि अगर पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन का सेशन और बिना शक्ल दिखाए कर रहे हो फिर क्या ही कर लोगे. यू कैन नॉट लर्न टू स्पीक इन पब्लिक विदाउट एक्चुअली स्पीकिंग इन पब्लिक, राइट? मैं एक्चुअली कल एक बुक पढ़ रहा था ऑफ डेल कार्नेगी, इट इज द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो उसमें ये बात लिखी थी, यू कैन नॉट लर्न टू स्विम बाय ओनली रीडिंग द बुक्स ऑफ हाउ टू स्विम, राइट? यू हैव टू गो इनसाइड द स्विमिंग पूल, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा तभी तुम सीख पाओगे. सो दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन. गाइस, यू कैन टर्न ऑन योर कैमरास. दिव्यांश, अभिलाषा, ताशु, निखिल, लकी, अहमद, काफी सारे लोग हैं. आई विल अप्रिशिएट इट. Yes, please everyone turn on your cameras. Come on guys, show your George to sir now. और जितने लोगों ने कर लिया, kudos to you guys, appreciate it. Nice. All right. So आप लोग तब तक करिए, तब तक we'll start the session. Okay. So मैं तुम्हें अगर अपने बारे में बताऊं जल्दी से 2 मिनट में. So the name is Aman Shukla and what I do is I'm a public speaking coach. I have been a TEDx speaker before and my age is right now 23. तो पिछले साल ही मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और अपने लेवल का कॉलेज मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी. तो समझ रहे हो ना, एमिटी, वो भी एमिटी नोएडा, जो अपन बोलते हैं ना न्योडा वाला, तो नोएडा. एमिटी नोएडा के बच्चे, तो तुम समझ लो कि किस तरह का अपना बैकग्राउंड है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है. तो द थिंग वाज दैट क्लास 3rd से माय फादर सेड कि अमन, कोई भी स्कूल में डू यू हैव एनी कॉम्पिटिशंस और एनीथिंग, यू गॉट टू पार्टिसिपेट. आई एम लाइक ओके, आई कैन डू इट बट आई डोंट नो हाउ टू राइट एंड रिसर्च एंड एवरीथिंग. क्लास 3rd के बच्चे को क्या पता होगा. सो ही सेड ओके, लेट्स डू अ डील. मैं तुम्हें सब कुछ लिख के दूंगा, you just have to go on stage and perform. I'm like, ये तो अच्छी डील है. मतलब मुझे बस बोलना है जाके, तो ठीक है. And then I started doing it in class 3rd, class 4th, class 5th. अब क्या क्या होते थे स्कूल्स में अगर कॉम्पिटिशन सोचो तो? इलोक्यूशंस होते थे, डिबेट्स, पोयम, स्टोरी टेलिंग, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे होते थे. You have to go on stage and perform. So I started doing that. अब आप सोचो, if a person goes on stage 5 to 6 times every year for the next 10 years of their life, क्या उनके अंदर से वो स्टेज फियर कम हो जाएगा? True. Because if you keep on doing something again and again and again and again, you are going to become good at it. कोई भी चीज हमेशा करोगे तो तुम उसमें अच्छे हो जाओगे. Let's talk about procrastination. बचपन से आज तक करते आ रहे हो, आज मतलब पापा हो ना उसमें. So that's what I'm talking about, कि whatever thing you repeat, you are going to become good at it. तो मेरे लिए वो चीज बाई लक, बाई चांस बोल लो, बट आई एम थैंकफुल टू माई फादर कि इन्होंने डाला मुझे. एंड लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा फियर कब कम हुआ. आई रियली डोंट नो कब हुआ था, क्योंकि मैं क्लास 3rd से करता आ रहा हूँ. आई डोंट नो कब फेल हुआ था. क्लास 2nd 3rd की चीजें याद होती हैं तुम्हें कि क्या तुमने कब क्या किया था, कितनी चीजों में. आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, बट वॉट आई रिमेंबर वॉज आई वॉज कंसिस्टेंट इन वॉट आई डिड. और ना कंसिस्टेंट होने के भी काफी सारी चीजें मैंने फेस की हैं. सो इफ वन थिंग आई वांटेड टू टेक फ्रॉम द नेक्स्ट 1 or 1.5 hour ऑफ द सेशन, जितना भी अपन कर सकते हैं, इज
कुछ भी अगर जिंदगी में कुछ भी उठा रहे हो ना, एक वो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर हमेशा रखना, बिकॉज यू गाइस नो दैट नेम, क्या नाम है उनका, alibaba.com के जो मालिक है, क्या नाम है उनका? जैकमा। यस, जैकमा। सो उन्होंने, उनकी एक बहुत बढ़िया रील थी जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, उसने उन्होंने बोला था दैट यू विल फेल टुडे, यू विल फेल टुमारो, बट यू विल सक्सीड डे आफ्टर टुमारो, ऐसा कुछ। एंड ही सेड मोस्ट पीपल गिव अप टुमारो इवनिंग, ठीक है, जब अगले दिन तुम्हें सक्सेस मिलने वाली होती है। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंसिस्टेंट, इफ यू बी एनीवेयर, कभी ना कभी तुम्हें वो चीज मिलेगी, वो पेशेंस वाली चीज होती है ना। मैंने कसम से ये नहीं सोचा था कि मैं ये लोगों को बताता रहूंगा कंसिस्टेंसी वाली चीजें, बिकॉज आई ऑल्सो यूज्ड टू टेक लाइफ अबे हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, अपनी जिंदगी अपन सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। बट देयर आर सम प्रिंसिपल्स, तो इससे यू कैन नॉट रन अवे। कोई भी चीज उठा लो, you have to be consistent, तुम बढ़िया होगे। and that's how I started to do it. फिर I started representing myself in other schools, जैसे अपने स्कूल के नाम से दूसरे स्कूल में जाते थे, and then वहां पे कुछ प्राइजेस जीते। तो अब क्या हुआ, एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मिल गया कि चलो, मैं, मुझे तो लगता ही था मैं अच्छा बोलता हूँ, हम लोगों ने भी बोला कि हाँ ये अच्छा बोलता है। सो दैट कॉन्फिडेंस ग्रू अ बिट। देन साइंस ले ली थी मैंने, है ना, जो गलती सब करते हैं, तो मैंने भी वही किया क्लास 11th में। मतलब CGPA 9 आ गया था 10th में, तो मैं बोला अरे ये तो अपना ही, अब तो कर ही लेंगे। और मेरे पापा भी बैठे, वो कहते हैं कि बेटा तुम तो साइंस ही लोगे। मैंने कहा अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है क्या कॉमर्स का कुछ? क्या तुम तो साइंस ही लोगे? मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं। फिर वो जो उल्टा वाली चीज होती है ना, तुमने साइंस ली, फिर साइंस ने, तो एवरीथिंग वैसे मेरे साथ हुआ। क्लास 12th में आई गॉट 33 इन मैथ्स। मतलब पास नहीं हुआ था, टीचर ने किया, मुझे समझ रहे हो, अगर 33 तुम्हें मिला है तो तुम्हें पुश किया गया। बाकी फिजिक्स में अच्छे थे, केमिस्ट्री में अच्छे थे, सब में बढ़िया था, मैथ्स की वजह से परसेंटेज डाउन हो गया था 70%। हमने बोला देखो ये भगवान का इशारा है, ठीक है, कि ये नहीं है तुम्हारे लिए, सो क्यों आगे जाके इंजीनियरिंग में अपना वो करना है। तो माय टीचर्स आल्सो सेड कि भाई देखो तुम बोलने में अच्छे हो, यू आर गुड ऑन स्टेज, तो कहीं ऐसी जगह जाओ जहां यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू शो योर फेस एंड टॉक टू अदर पीपल। आई एम लाइक ओके लेट्स फाइंड ऐसे कौन से डिग्रीज है जहां तुम्हें करना होता है। तो बहुत ज्यादा नाम सुना मैंने मास कम्युनिकेशन का, राइट, मास मीडिया स्टडीज, यू नो दैट। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है। फिर कॉलेजेस ढूंढे इधर उधर, कहीं नहीं मिले, मतलब मिले ठीक ठाक मिले, बट उनमें जैसे मैं, आई एम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़, यू गाइस नो छत्तीसगढ़ राइट। तो अब घर से थोड़ा दिल्ली भेजने में थोड़ा घर वाले कंजर्वेटिव काइंड ऑफ उससे थे, तो बोले अरे वहां जाके क्या करोगे, ये वो। बट फाइनली मैंने मना लिया कि नहीं, घर पे तो मुझे नहीं रहना अच्छे से। तो आई वेंट टू एमिटी, जिसका कोई नहीं होता उसका एमिटी होता है, तो हम भी एमिटी चले गए, हमें ले लिया उन्होंने, कोई सीन नहीं है। एंड देन काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। यू गाइस हैव हर्ड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग राइट, वेयर यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो आई आल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। 2-2.5 साल, मतलब मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, कितनी चीजें कर सकता था मैं एमिटी में रह के, बट 2-2.5 साल आई गेव ऑल ऑफ माई इट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, कम से कम 2 से 2.5 साल। नाउ सबसे बढ़िया चीज उसमें क्या हुई, दैट वहां पे हर संडे सेमिनार्स होते हैं, लाइक यू गाइस नो अबाउट इट राइट, 800-900 लोग आते हैं। सो आई यूज्ड टू होस्ट द वेबिनार्स फॉर देम, सॉरी द सेमिनार्स फॉर देम, वेबिनार बोल बोल के आदत हो गई लॉकडाउन के टाइम पे। आई यूज्ड टू होस्ट द सेमिनार्स फॉर देम। तो स्टार्टिंग में जो ऑडियंस के अंदर आग लगानी होती थी ना, कि लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, वो काम मेरा होता था। और तो मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया। सो यू नो मेरी एक लाइन थी जो मैं हमेशा यूज करता था, और जिससे ऑडियंस एवरी टाइम दे यूज्ड टू रिएक्ट। और वो लाइन मैंने कहां से उठाई थी मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉफी विद करण में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर आए थे, ठीक है, और रणवीर और अर्जुन तो एक दूसरे को ना बाबा बाबा करके बुलाते, एकदम अच्छी फ्रेंडशिप है इनकी। तो आई थिंक अर्जुन इनवाइटेड रणवीर सेइंग दिस, ओके, और यही चीज से मैं डिग्निटरीज को बुलाता था स्टेज पे। सो उन लोग ऐसा बोलते थे, मैं ऐसा कहता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, उभरते हुए सितारे, हमारी आंखों के तारे, दुलारे, पढ़ाई के मारे, प्लीज हेल्प मी वेलकम द हार्ट थ्रॉब, इंडिया के दिलों की धड़कन, ही इज नन अदर देन फलाना ढिमकाना, व्हाटएवर द नेम इज, एंड एवरीवन वाज लाइक ओह नाइस, मजा आ गया, मजा आ गया। एंड इट यूज्ड टू वर्क एवरी टाइम, हमेशा काम करता था, राइट। और फिर बाद में मुझे उसके पीछे की साइकोलॉजी और साइंटिफिक फैक्ट्स पता चले कि वो काम क्यों करता था। मैं आपको बताऊंगा इन द एंड, अगर मैं भूल जाऊं तो चैट सेक्शन पे याद दिलाना, ठीक है, दैट व्हाई इट यूज्ड टू वर्क एवरी टाइम। सो नेटवर्क मार्केटिंग में 2.5 साल मैंने काम किया। उसमें बढ़िया चीज क्या हुई, दैट आई, मेरे अंदर से वो फियर निकल गया था नए लोगों से बात करने का, और मुझे पता चल गई थी क्या चीजें होती हैं जिससे एक इंसान रिएक्ट करता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नो कि एक इंसान एक्चुअली इंटरेस्टेड है तुम्हारी चीजों में, और क्या उनके नॉन वर्बल क्यूज है जिससे तुम्हें पता चल जाए कि यू नो दिस पर्सन इज नॉट समवन हु इज दैट इंटरेस्टेड इन यू। तो काफी चीजें फिगर आउट की उस 2.5 साल में। आई थिंक आई गेव अराउंड 300 to 400 प्रेजेंटेशंस टू अलग अलग पीपल, एक एक करके 300-400 लोगों को। तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। देखो दबा के मेहनत की मैंने, ठीक है, जितना पैसा मेट्रो में गया उतना कहीं नहीं गया, तो बहुत दबा के काम वाम करता था। और फिर 2.5 साल बाद मैंने कहा बहुत हो गया भाई, काफी काम किया, पैसे ठीक ठाक मिले थे मुझे। आई जनरेटेड इन द 2.5 years अराउंड 70-80,000 जो 2.5 साल में कमाए थे मैंने। तो एक बच्चे के लिए हु इज इन कॉलेज इट्स ठीक ठाक है, अपना चलाने का हो जाता था। एंड देन थोड़ा ग्रुप हिलने लगा मेरा कि सही काम नहीं हो रहा था। देन व्हाट हैपेंड, मेरे कुछ दोस्त थे,
जो इतनी अच्छी हरकतों में नहीं थे, ठीक है, व्हेन आई से अच्छी हरकतों नहीं, तो तुम थोड़ा थोड़ा समझने लग जाओ, ओके, हु आर नॉट इन सच अ गुड संगत, जो घर वालों की तरफ से बोला जाता है। तो दोस्त थे, हरकतें खराब थी, इंसान अच्छे थे, तो मैं उनके साथ हैंग आउट करने लगा। तो आखिरी के 6 महीने ऐसे निकले कि पता ही नहीं चला कैसे निकले, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो अनुभव सिंह बस्ती को आप लोग जानते हो, तो उसने उसने कुछ चीजें बताई थी ना, कि हम कॉलेज पहुंचे, हमें कुछ मिला और फिर सेमेस्टर निकल गया, तो बस उसी तरह वो आखिरी सेमेस्टर मेरा ऐसे ही निकल गया, आउट ऑफ नोवेयर। नौकरी मिल गई, एक्स्ट्रा मार्क्स, बायजूस एक्स्ट्रा मार्क्स तो आप लोग जानते होंगे। सो आई वर्कड एट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर 2.5 months। मेरे से नौकरी नहीं हो पाई, मैंने फिगर आउट, जलंधर भेजा गया था मुझे, आई फिगर आउट दैट दैट इज नॉट फॉर मी। तो मैं भाग के आया था लिटरली, ऐसा नहीं कि सर मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे भेजा गया यहाँ सेल्स करके आओ। मैं वहां से घर निकल गया, जलंधर से बस पकड़ी दिल्ली, दिल्ली से छत्तीसगढ़ आ गया मैं। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। एंड देन द बेस्ट पार्ट, दैट लॉकडाउन हैपेंड मार्च के टाइम पे। तो अब क्या, घर वाले भी बाहर नहीं भेज सकते कि तू जा काम कर, कुछ कुछ घर पे ही रहना है। तो दैट वाज, बहुत लोगों के लिए लॉकडाउन वाज लाइक यार क्या करना है क्या, बट काफी लोगों के लिए इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अगर बोला जाए तो। अगर आप लोग भी देखो तो यू गाइस वुड हैव फिगर्ड आउट तुम्हारी खुद लाइफ के कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स व्हिच यू डिडंट इवन नो दैट यू कुड हैव डन। तो मेरे साथ भी यही हुआ, पहले 2-3 महीने तो सब सर्टिफिकेशंस कर रहे थे, रिमेंबर, सारे कोर्सेज कर लेते हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं फ्री। तो मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग, पीआर, इतने इतने कोर्सेज कर लिए। फिर वो किक वाली चीज होती है ना, कि किक नहीं मिल रही थी किसी चीज में, कि तुम्हें भी तो खुद खुद के अंदर पता है ना दैट यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स, है ना, कि यार नॉर्मल 15-20-25 हजार की नौकरी लेके तो जीने वाले अपनी जिंदगी नहीं रखनी है, इनिशियली सबको यही लगता है। तो मुझे भी लगता था। और फिर एक दिन पब्लिक स्पीकिंग के 1-2 वीडियोस देख रहा था, उसमें कॉन्सेप्ट समझ आया मुझे, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का काइंड ऑफ। मुझे लगा ये कितनी बढ़िया चीज है यार, लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। मैंने कहा मैं बताता हूँ। आई मेड अ वीडियो एंड आई जस्ट अपलोडेड इट ऑन माई पेज। तब नॉर्मल पेज था, 400-500 फॉलोअर्स थे, और काफी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला उस पे। 30 सेव्स आए थे, 30-40 शेयर्स थे, लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए। और पहली बार तुम कुछ अच्छा करते हो एंड इफ यू आर गुड एट इट, तो लोग अप्रिशिएट करते ही हैं। अब वो मेरा वो डोपामिन चीज बन गई कि अगर मैं डालता हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छे मैसेज भेजते, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है लाइफ में। सो फॉर द सेक कि लोग इसे पसंद करते हैं, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट। तो मैंने इंस्टाग्राम पे लगातार कंटेंट डालना स्टार्ट किया एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट। मैंने बोला ये तो सही है। एंड 3 to 4 months लगातार ईच एंड एवरी डे मैं कुछ नया सीखता था और कुछ अपलोड करता था, नया सीखता था, अपलोड करता था। और बताने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता था, लाइक आई डिडंट यूज टू टीच। मैं थोड़ा मजाक मस्ती वाले तरीके में, बिकॉज मैं जब वैसा इंसान नहीं था तो मैं दूसरों को वैसा कैसे सिखाऊं। सो दैट्स व्हाट आई डिड। और आफ्टर 4 months एक गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके कॉलेज है, उनका एक बार मेल आया एंड एवरीथिंग कि सर यू आर अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, ये वो, सो वी वांट यू टू कम एंड टेक अ वेबिनार फॉर अस। मैं कहा हैं, मैं वेबिनार लूं तुम्हारे कॉलेज में? मैं कहा भाई अभी तो पास आउट ही हुआ मैं। मैं कहा ठीक है यार, अच्छा है, कोई सीन नहीं है। तो मैं आया और मैंने वेबिनार लिया और सबको बहुत अच्छा लगा। तो अब ना मुझे ये बात लगने लगी दैट भाई तुम में कुछ तो है, ठीक है, जो हम खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना कुछ चीजों के लिए, कि यार हम इतने भी सही नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो भाई वो जो जाकिर खान नहीं कहता भाई तू बंदा है, तो वो भी मुझे पता लगने लगा, हाँ भाई अपन कर सकते हैं बढ़िया। एंड देन अभी पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 1.5 साल में आई परफॉर्म अराउंड 40 से 50 डिफरेंट कॉलेजेस में। उसमें डीयू के 12 कॉलेजेस आते हैं, एमयू के 5-6 कॉलेजेस हैं। यू टॉक अबाउट माई ओन कॉलेज, एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी ऑनलाइन, जितने मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आई परफॉर्म। और फिर आईआईटी धनबाद की बारी आई थी, वहां उन्होंने मुझे गेस्ट लेक्चरर बुलाया। मैंने कहा अरे बाप रे, इतने मतलब गेस्ट लेक्चरर नाम से कितना वो लगता है ना। मैंने कहा ठीक है चलो वो भी कर लेंगे। तो अब फील आने लगी काम में मुझे कि हाँ ये होती है ना थोड़ी जिंदगी, ऐसे ऐसे जिया करते हैं। और लोग बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए तुम्हें स्टेज पे जाना है ना, लोगों के सामने बोलना है लाइव। सो आई थिंक आई एम द सोल पर्सन जिसने अपना पब्लिक स्पीकिंग का करियर ऑनलाइन स्टार्ट किया और ऑनलाइन ही ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। जब से मैंने स्टार्ट किया आई हैव नॉट स्पोकन इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस टिल देन। तो समझ रहे हो कि वो भी अपने दिमाग से निकाल देना दैट यू नीड लाइव ऑडियंस एंड यू टू लर्न एवरीथिंग कि तुम बन पाओ। अगर तुम चाहते हो, तुम्हें मजा आता है अपने काम में, सो यू कैन डू इट। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग राइट नाउ। अभी इट्स लाइक एवरी मंथ वी आर, मी एंड माई टीम जो अपन काम करे, वी आर हिटिंग 6 figures बहुत अच्छे से थ्रू क्लाइंट्स एंड वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ गुड जर्नी विद दैट। ये एक छोटा सा पार्ट था विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। नाउ अब तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट डू यू गाइस वांट टू know something about? Is it, should I take the part 2 communication skills वाला thing, should I go for the public speaking one, और उसके बाद अपन Q&A करेंगे? तो किस पे ज्यादा वोट से, communication skills पे बात करें या public speaking पे? तुम लोग बताओ, ऑडियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। You guys tell me. Sir, I have some questions for you. Sure. Sir, our audience really would like to know the reasons why they fear to speak in front of a public. All right. It can be Yeah. because they feel like they are going to be judged.
Yes, yes, I obviously. want another aspect, you know, your unique answer Yeah, to this. sure, योगेश, I'll do that. काफी ज्यादा लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बोल रहे हैं, we'll go for that too. Okay, तो डर के बारे में सबसे पहले समझते हैं, ठीक है? मुझे लगा था कि अगर कोई मुझे पैसा दे रहा है उसे कुछ सिखाने को, तो मुझे उसकी रेस्पेक्ट करके उस इंसान को रिजल्ट्स देने हैं फॉर श्योर, बिकॉज इफ अ पर्सन ट्रस्ट यू विद देयर मनी, काफी बड़ी चीज होती है, ठीक है? और आई डोंट चार्ज लाइक 1-2 हजार रुपए ना, चार्ज गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो अगर कोई इतना इन्वेस्ट करता है तो तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हाँ यार, यू हैव टू गेट देम रिजल्ट्स। तो मैंने ना बहुत तगड़ी रिसर्च की अबाउट फियर एंड एवरीथिंग। तो डर के बारे में ना तुम एक चीज आज समझ लो, दैट फियर इज नॉट रियल, ये सच्चा है ही नहीं। और मैंने एक लाइन सुनी थी विच इज चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव अबाउट इट, और इसको मैं समझाता हूं, एक बार सुनो, ठीक है? फियर इज नॉट पेन, इट इज द एंटिसिपेशन ऑफ पेन। फिर से सुनो, फियर इज नॉट पेन, इट इज द एंटिसिपेशन ऑफ पेन। अभी दर्द हुआ नहीं है, होगा इसका सोच के तुम्हारी अभी ऐसी तैसी हो रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे गए, आपने बोला मम्मी पापा दोस्तों के साथ ट्रिप जानी है, गोवा जाना है, ऐसा ऐसा ये वो। अपने बोला कोई जरूरत नहीं जाने की, वहां कोई है नहीं तुम्हारे जान पहचानने वाला, कुछ हो गया तुम्हें, कुछ चोट लगी, कोई होगा वहां पे देखने को? अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं गया गोवा, गोवा भी गया भी नहीं हूँ, वहां कुछ हुआ भी नहीं है, चोट लगी भी नहीं है। अगर मैं गया, कुछ हुआ, चोट लगी, तो क्या होगा, ये सोच के वो मुझे नहीं भेज रहे। नहीं यार, ये तो सही चीज है। तो अब समझ आए फियर क्या होता है? ये अभी कुछ हुआ ही नहीं है, इट इज ऑल विच इज परसीव्ड इन योर माइंड कि क्या क्या हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं कि सर मुझे अपनी नर्वसनेस हटानी है, और मैं उन्हें एक बार में बोलता हूँ बेटा नर्वसनेस तो कभी नहीं जाएगी। लाइक अरे सर मैं पैसे क्यों दे रहा हूं आपको? मैंने सुनो समझो, ये जो एंजाइटी और नर्वसनेस है, ये सारी चीजों का क्या खेल है, दैट दीज आर इनबिल्ट इनसाइड ऑफ यू। जब भी तुम्हारे सामने कोई डेंजर आता है, तो तुम्हारी बॉडी इज बाउंड टू रिएक्ट इन अ वे दैट इट इज। अब तुम सोचो, मैंने तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया और मैंने तुम्हारे सामने एक सांप छोड़ दिया, ठीक है? तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी या फिर बहुत धीरे हो जाएगी? नॉर्मल तो नहीं रहेगी, कूल। और तुम भागने का तरीका देखोगे कि कहां से भाग सकूं जल्दी से जल्दी, राइट? Yes, sir. नाउ लेट्स, हाँ जी, Yeah, please, can you speak English so that I can also understand, or I can sure, participate? I'll try to have a mix of both. Yeah. Okay, so now I'm going to keep you in another room. In that room there are around 50 people sitting, and now I lock you in that room and I tell you now you have to give a speech in front of them. फिर से you will have the same reaction. Either your heartbeat will go up or it will go down, but it won't stay as the same. सांप के आगे भी सेम रिएक्शन एंड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस भी सेम रिएक्शन। अरे व्हाई इज दैट? विल अ स्नेक बाइट यू टू डेथ? यस, इट विल बाइट यू टू डेथ, बट कैन एन ऑडियंस डू दैट? नो। तो डर जरूरी है कि नहीं? फियर हैज टू बी देयर, वरना शेर के सामने आ जा, खा जाएगा, खत्म। बट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस द फियर इज नॉट लेजिट। इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस वो फियर क्यों आता है? बिकॉज यू थिंक दैट इफ यू फेल देन व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल हैपन। एंड ये हमारे माइंड का प्रोसीजर है दैट इट ऑलवेज थिंक्स अबाउट थिंग्स दैट कैन मेक अस सर्वाइव। वी आर मेड टू सर्वाइव एंड नॉट थ्राइव। तुम जीने के लिए बने हो ना। हम पहले बंदर थे, याद है? उसके बाद हम धीरे धीरे वी बिकेम दिस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। सो इन दोस टाइम्स हमारा सिर्फ एक ही काम होता था, खाना है और बचना है जंगली जानवरों से। सो इट इज दैट सर्वाइवल मैकेनिज्म व्हिच ऑलवेज किक्स इन। सो फियर हैज टू बी देयर, but it needs to be controlled. Now, how can it be controlled? Okay. So you have nervousness inside of yourselves, and there is another thing which is known as excitement. Now, what good public speakers do is they turn that nervousness into excitement. That's it. हटाता कोई नहीं है. No one is like, यार इसको हटा दो, खत्म गया. It does not happen like that. What you need to do is turn that nervousness into excitement. Okay. Now, how do I explain it to you? Okay. पहले एक लाइन सुनो और इसको समझो, then let me explain about it. Okay. Nervousness is basically excitement with a negative outcome in your mind. And excitement is basically nervousness with a positive outcome in your mind. एक बार फिर से रिपीट करें. Nervousness is basically excitement with a negative outcome. Excitement is basically nervousness with a positive outcome. जब आप स्टेज पे जाते हो, when you are on stage, you always think about all the things that can go wrong. अगर मैंने गलत बोल दिया तो,
अगर मेरे कपड़े सही नहीं हुए तो what if the mic doesn't work, what if I forget something, what if I fumble. But no one thinks, bro, what if I succeed? What if I slay the audience like anything? What if they become my fan? What if they're like, sir, यहाँ मेरे एकदम साइन दे दो, क्या बोला है आपने, मजा आ गया. What if मतलब your audience becomes your fan? ये सोच के अच्छा लगता है. Just imagine for a moment. एक बार, okay, let me do one thing right now. That is what you all can do. It's a small activity, okay? थोड़ा अच्छे जगह से बैठ जाओ. अगर मोबाइल वोबाइल पकड़े हो तो just sit somewhere, okay? अच्छे से मोबाइल कैमरा सामने रख दो. And a small activity, okay? Close your eyes right now. सब लोग जल्दी से अपनी आंखें बंद करो. And whatever I'm saying, just imagine it. And this will tell you what nervousness and excitement does, okay? Everyone. Close your eyes and imagine whatever I'm saying. आप वहां पे, okay? So you are sitting in your college auditorium. There are more than 500 people in that auditorium, and there is going to be an event जिसके speaker आप हो. You are the speaker of the event, okay? And you are sitting at the first row at the extreme right corner, and you are wearing your favorite colored suit जो इतना fit है कि तुम कह रहे हो वाह भाई confidence आ गया, मजा आ गया, right? And you're holding a pen and diary in your hand जिसपे आपके कुछ notes हैं. And now a host comes on stage, and the name of the host is Aman Shukla, and he comes on stage and he's like, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, बढ़ते हुए सितारे, हमारी आंखों के तारे, दुलारे, पढ़ाई के मारे, please help me welcome, he or she is none other than dash, and I say your name. And 500 की ऑडियंस खड़ी हो रही है तुम्हारे आगे for you, and they are clapping for you to go on stage. तुमने बोला मोमेंट तो आ गया भाई. Now you go to the stage. आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हो स्टेज की, and you walk on the stage. You take the mic from the host, and I'm like, all the best, खराब मत करना. And you're like, इसकी ऐसी तैसी. And you took the mic, and you are now looking at the audience, and you started your speech. आप अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हो that this is how I started, these are the problems which I faced, और मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, but then also I came out emerging as a champion right now, okay? And finally आपने एक छोटा सा जोक मारा, and everyone started laughing. And then you were explaining some concepts, और आप देख रहे हो ऑडियंस नॉड कर रही है. They are smiling looking at you. You are like, जैसा सोचा था एकदम वैसा हो रहा है, shit bro. And then finally at the end आपने उन्हें एक छोटी सी इमोशनल स्टोरी सुनाई about your life, और उनकी आंखों में, एक दो ऑडियंस की आंखों में आपने आंसू देखे. And you're like, damn, I just hit the nerves. और आपने बोला thank you so much. और जैसे आपने बोला 500 की ऑडियंस खड़ी हुई है, and they are clapping for you. They're like, wow man, पैसा वसूल, amazing. 15 मिनट दिया लेकिन एक नंबर था. And you give the mic, और आप ऑडियंस से नीचे आते हो जैसे स्टेज से 4-5 लोग, people come around you and they're like, यार how did you do it? It was so amazing, awesome, amazing. Now open your eyes. मजा आया? This is what I'm talking about, that why don't we start thinking about what are the things that can go right? The moment you do that, you open a possibility to another world. And this is the best practice in public speaking that you can do to visualize a positive outcome. कभी भी आप जो गलत सोचते हो उतना गलत होता तो नहीं है ना. Crazy feeling. Yes, Gautam, it is, because that is how good speakers practice. They visualize कि क्या क्या सही होगा. And now, okay, this is how you can practice too, by visualizing only. So you're walking. मैं क्या करता हूँ? I walk in my hall. अपने हाथ में डेयरी मिल्क लेता हूँ, सोचता हूँ कि वो रिमोट कंट्रोल है जिससे तुम पीपीटी नहीं चेंज करते हो. So I take the small dairy milk, I walk, and I imagine मेरे आजू बाजू बस ऑडियंस ही ऑडियंस बैठी है, और उसको मैं दे देता हूँ, चलो ये 400 लोग हैं, यहाँ 800 लोग हैं. And I just start talking like anything. Whatever new concept I understood, I just walk and I explain it to an imaginary audience in front of me. Okay? So if I have to give a speech at your college, I'll just take a photo of whatever the auditorium is, and I'll imagine, okay, यहाँ खड़े होंगे, इधर से बोलूंगा. Now I visualize all the things that I'll do जब मैं वहां जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा. Now I practice here, not practically बहुत अच्छे से कूद के इधर उधर से. मैं यहाँ ज्यादा अच्छे से practice करता हूँ. This is known as mental rehearsal. मैंने अपने दिमाग में 50 बार I have performed at the College of LPU 50 times. Now when I'll go, actually मैं बोलूंगा, अरे ये तो 50 बार कर ही लिया, अब तो बस करना है लोगों को दिखाने के लिए. So now you are comfortable in front of the audience. You're like, अरे this is a very familiar situation. हमें डर क्यों लगता है? Because we are not familiar in a situation. जब तुम familiar होते हो, you are comfortable with it, right? When you meet a new person, तब बात करने में थोड़ा धक-धक होता है. But when it's your friends, तुमसे ज्यादा कोई बात नहीं करता. Why is it? Because familiarity. तो जिस भी चीज से डर है, उससे क्या बनना है? Familiar होना. That is how you cure any fear of yours in your life. मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, तो मैं लाइट चालू करके ऐसे गेट खोल के बैठ जाता था अपने रूम का, लाइट बंद करता था और गेट खोल देता था कि लाइट है. देखता था नीचे से कोई चुड़ैल पैर नहीं खींच रही, ऊपर से कोई नहीं लटक रहा है. नाइस,
नहीं होता। फिर धीरे धीरे आधा दरवाजा बंद, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके यू एक्सपोज योरसेल्फ ग्रेजुअली टू द फियर। एक साथ कभी उसके आगे चले जाओगे तो हार्ट अटैक, लाइक एनीथिंग। सो लोगों के बहुत सारे फियर्स होते हैं, एंड द ओनली वे टू वर्क ऑन योर फियर इज टू फेस देम। आई रेड दिस कोट, द ओनली वे टू रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स इज टू फेस योर प्रॉब्लम्स। बस वही एक तरीका है। इट्स लाइक सो द लास्ट थिंग दैट ट्रीट योर प्रॉब्लम्स एज अ स्मॉल ड्रैगन, एज अ स्मॉल ड्रैगन। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, उसको समझो छोटा सा ड्रैगन है। अब अगर तुमने इसका कुछ नहीं किया, आफ्टर 5 years it's going to become a full-fledged dragon जो कि आग उगलता है, and it can destroy you in a matter of minutes, I think seconds। तो एक ड्रैगन को आप कब मार सकते हो, जब वो फुल फ्लेज है, जब वो छोटा सा है। ऑब्वियसली जब वो छोटा सा है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कोई भी प्रॉब्लम को ना मतलब नजरअंदाज मत करना, दैट्स इट, बिकॉज इट्स गोइंग टू कम एट यू, एंड व्हेन इट विल, तब प्रॉब्लम होगी। So whatever it is, even it's a fear of public speaking, like call 10 of your friends who are interested in learning all of it. Make a group कि यार every week for 2 days we'll come on a call for 1 hour and we will discuss something. That's it. Anything. We'll talk about our stories, our day, and that is actually a start. तुम धीरे धीरे अपने आप को expose करो अपने fear के through. There in psychology there is a therapy known as exposure therapy. Exposure means you expose yourself gradually to whatever you fear. So a fear is known as agoraphobia, जिसे हर चीज का डर होता है। सो एलिवेटर्स का भी कुछ लोगों को डर होता है कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अंदर बंद हो जाएगा, काफी फियर्स होते हैं लोगों को। सो उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, दे आर शोन द इमेज ऑफ एलिवेटर कि सबसे पहले लो ये एलिवेटर की फोटो, इसको देखो, और तब तक देखो जब तक तुम बोर नहीं होते। कितना टाइम लगेगा बोर होने में? 5 मिनट, 10 मिनट, 2-4 मिनट देख देख के बोर हो ही जाओगे। यूर लाइक यू आर बोर्ड, ओके नाउ यू आर फेमिलियर, सी व्हाट वी आर सेइंग, यू आर फेमिलियर, ही सेड यस, ओके। अब अगले हफ्ते we will stand 20 feet away from the elevator and we'll look at the elevator. Cool? He's like, no. 25 feet? Like, okay. चलो 25 feet हम खड़े हैं, देखो जब तक बोर नहीं होते देखो। Okay, 10 मिनट बाद बोर हुए। Should we move 20? Like, okay. Okay. Should we move 15? Like, no. 18? Cool. फिर धीरे धीरे तुम जाते हैं, and finally after 2 to 3 weeks you stand in front of the elevator and the jaws of death open their face and you look inside it. It's like अब तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, you're like आज इसके अंदर स्टेप लोगे? He's like no, कोई सीन नहीं है, कर लेते हैं। ओके अब एक स्टेप लेते हो एंड फाइनली दैट पर्सन बिकम्स फेमिलियर। तो जो भी डर है फेस करोगे तभी जाएगा, बिकॉज कभी ना कभी तो लोगों के सामने बोलना ही है, एंड इफ यू डोंट लर्न राइट नाउ बहुत बेइज्जती करवाओगे अपनी। मैं सच बात बता रहा हूँ, और होता भी है काफी लोगों के साथ। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, लोग बोलते हैं यार इतना बड़ा इंसान हो गया बट यू डोंट नो हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। सो दैट्स ये एक लाइफ स्किल है। एंड मैं व्हाई डू आई टेल इट्स इंपॉर्टेंस, मुझे ना पापा और बड़े बड़े लोगों की तरह साउंड नहीं करना है, बट टेक्नोलॉजी इज देयर टू टेक जॉब्स अवे फ्रॉम यू लाइक दिस। तुम रिप्लेसेबल हो, मैं तुम्हें बताऊं, यू आर रिप्लेसेबल। तुम नहीं काम कर रहे हो, तुम मजे ले रहे हो टाइम पे, यू आर नॉट सीरियस, तुम्हारे जैसे 100 लोग हैं आई कैन रिप्लेस यू विद राइट नाउ, बट मेरे जैसे 100 लोग नहीं है, मेरे जैसे 3-4 लोग ही होंगे, और उनके शायद और ज्यादा नेक्स्ट लेवल के होंगे। सो विद दैट आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज इन ऑर्डर टू बी phenomenal, अगर तुम्हें अलग हटके बनना है ना, so you have to find that one thing in which you are very very good at, like master your playing field। मेरे जितने भी दोस्त हैं, आज तक जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, और आई एम नॉट टेलिंग यू टू ब्रैग और एनीथिंग अबाउट एनीथिंग कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं ऐसा कर लेता हूं, बट आई नो माई स्किल। अगर तुम मेरे साथ 1 घंटे बैठोगे तो मैं तुम्हें इतनी नॉलेज और इतनी इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दूंगा ना कि तुम कॉन्फिडेंट होकर अपने आप निकलोगे उस कॉल से, बिकॉज आई बिलीव इन माई स्किल। तो तुम मुझे बताओ, तुम किसी एक चीज में अच्छे हो, व्हाट इज योर शिट, व्हाट इज वन थिंग दैट यू आर सो गुड एट कि तुमसे बेहतर वो कोई कर ही नहीं सकता। मेरे सर्कल में किसी को भी पब्लिक स्पीकिंग प्रॉब्लम होती है, उसके दिमाग में सबसे पहले एक नाम आना चाहिए, दैट इज अमन शुक्ला, और वो मेरा गोल है। तुम अपना देखो, व्हाट इज यू, तुम क्या एक चीज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन राइट नाउ, समझो, ठीक है? यू डोंट नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस अनलेस योर वीकनेस इज कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है?
तब उस पे काम करना है. बट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स. सो फॉर एग्जाम्पल मैं गाने में भी ठीक हूँ, मैं गा ठीक ठाक लेता हूँ, अभी गाऊंगा नहीं लेकिन मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ, ठीक है. आई कैन मेक अ करियर इन इट. अगले 5-10 साल में अगर मैं करता जाऊं तो चाहो कुछ भी कर लोगे. सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इन सिंगिंग आई एम एट नंबर 3. ओके, बिकॉज आई एम एवरेज एट इट, काफी कम हूं मैं उस पे. बट इन स्पीकिंग आई एम गुड. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई एम एट 7. आई एम वेरी गुड एट इट. ओके, अब अगर मैंने 3 साल दोनों में डाले, 3 साल घिस के काम किया मैंने गाने पे, मैं कहां पहुंच जाऊंगा? शायद 4, 5, 6, शायद 7 पहुंच जाऊं. स्टिल आई एम ओनली गुड एट स्पीकिंग. लैक्स ऑफ पीपल आर गुड एट स्पीकिंग. अब मैंने 3 साल 7 वाले पे काम किया, दबा के घिस के काम किया. 7 से 8, 8 से 9, एंड मे बी आई कैन रीच 10 too. And 10 is the field of experts. And let me tell you, it is the experts who are paid handfully. मैं जितना पैसा मांगूंगा उतना मुझे मिलेगा. 7 वाले को जितना मिलेगा उतना उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्शनल, यू आर गुड. एंड गुड हैज नथिंग टू डू. तुम ठीक हो, तुम्हारे जैसे काफी लोग ठीक हैं. तुम मुझे बताओ ना, व्हाट इज समथिंग दैट यू आर सो गुड एट कि एक्सेप्शनल हो. दैट्स व्हाट आई से. एंड एक लाइन है जो मैं सबको बोलता हूं, सेल्फ रियलाइज्ड मीडियोक्रिटी से वर्स्ट चीज कोई नहीं होती. व्हेन यू नो यू आर मीडियोकर एंड यू कैन डू सो मच गुड, राइट? तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं फोकस ऑन 5 things. फोकस ऑन 1 thing, डू इट 100 times and you'll become amazing at it. And it is not some kind of bullshit motivation that I'm trying to give you. It's very practical. तुम वीकनेस पे काम करोगे, तुम्हें 15-20 साल लग सकते हैं. तुम स्ट्रेंथ पे काम करो, शायद तुम 5 साल में कर लो. यू आर लोअरिंग दैट टाइम, राइट? एंड अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आती, तुम किसी और से करा लो. दैट्स इट. एंड if you want to work on communication, public speaking, find somebody who is already good at it and tell them to mentor you. ऐसे ही तो करते हैं ना. How do you become good at something? Bob Proctor is a person. Have you guys heard about law of attraction? Most of you would have. कुछ लोगों ने सुना होगा. So Bob Proctor is a person who talks about that, and he says if you want to become good at something, find someone who has already done that और उसके footsteps trace करो. Because success leaves clues. If you find what those clues are, तुम वहां तक पहुंच सकते हो, right? With that, yes, योगेश के क्वेश्चन से अपन कहां से इधर चले गए, right? So we connected with that. So we guys want to talk about something about communication, right? So let's just understand what that is right now, okay? See guys, can you guys tell me in the chat section what are the reasons that we communicate with each other? Anything you think, why do we communicate? आज मैं, आप मुझसे, और आप जब भी किसी और इंसान से, why do you guys talk? Why do we communicate? To convey, okay. Interdependence, cool. Convey our feelings, info, share ideas, express our views, information. To listen and understand, exchange ideas, know about those feelings, introduce, we have need. Yes, express our views, share our points of view. Correct. Cool, amazing. Now what I figured out was we communicate only for 3 reasons. And let me give you it very practically. The first reason why we communicate is to create and enhance a good feeling. ब्रो आज तो एग्जाम में ना मैं पढ़ के भी नहीं गया था और मैं पास हो गया भाई. नहीं पता कैसे हो गया, बट मजा आ गया. ब्रो, इट्स अमेजिंग, इट्स सो फन. सो व्हाई आर यू कम्युनिकेटिंग टू योर फ्रेंड? टू क्रिएट एंड एनहांस अ गुड फीलिंग. बोलते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं. दैट वाज नंबर 1 रीजन. सेकंड, टू गेट आउट ऑफ अ नेगेटिव फीलिंग. भाई आज एग्जाम में पढ़ के भी नहीं गया तो और फेल भी हो गया भाई, क्या करूंगा जिंदगी में नहीं पता. व्हाई आर यू कम्युनिकेटिंग? बिकॉज यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग. एंड द थर्ड थिंग इज to create a new result. For example, Yogesh is someone who works with me, और योगेश अपनी full capacity में बहुत नहीं कर रहा है. So I'm like, Yogesh, you can do so much better, bro. तुम में बहुत potential है. So that is why I'm communicating. Why? To create a new result. जो हम दोनों result create कर रहे हैं, that is not nominal. हमें उससे बहुत बढ़िया करना है. So those are the 3 reasons why we communicate. और फिर मैंने बोला 3 ही क्यों, इसको एक बनाओ ना. तो अगर ये तीनों चीजों को अपन एक चीज में डिफाइन करें ना, we communicate to feel better. That's it. To create and enhance a good feeling, to feel better. To get out of a negative feeling, to feel better. To create a new result, to feel better. That's it. हम बात ही अच्छा फील करने के लिए करते हैं. हम क्रीचर्स ही ऐसे हैं यार. Does anybody wants to stay negative? No, right? So that's what the basic thing is. Now the thing is, when we communicate, एक चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छे से communicate करनी है, that we are positive people. Because people love to be around positive people, right? कि तुम एक अच्छी वाइब छोड़ोगे तभी तो लोग तुम्हारे आसपास रहना पसंद करेंगे. And you imagine the people जिनके आजू बाजू आपको रहना पसंद नहीं. Can you have an image of them in their mind? ये इंसान नहीं रहना. Why? Because you know the reasons कि इतने अच्छी वाइब्स नहीं आती.
is something that you can get positive vibe around you, so people would want to communicate. ठीक है? And what is that? इसको अपने पास लिख लो या इसको समझ लो अच्छे से. That rate everyone you meet as a 10. इसका मतलब समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मेट रेहान फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है? और मैं रेहान से मिलते ही मैंने अपने दिमाग में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैंने रेहान को जज कर दिया कि भाई ये बंदा 3 है. बिना बात किए, बात करने से पहले ही आई जस्ट जज्ड यू लाइक एनीथिंग. ठीक है? दिल पे मत लेना भाई, बट हंस रहे हो तो ठीक है. ठीक है? सो आई जस्ट जज लाइक 3 है. सो नाउ एट व्हाट लेवल और किस लेवल की एनर्जी से आई विल कम्युनिकेट विद रेहान? एट नंबर 3, क्योंकि मैंने जज ही उस पे किया है. मैं बोलूंगा हाय रेहान, कैसे हो? रेहान इज लाइक ठीक हूँ भाई, तू कैसा है? लाइक बढ़िया, सब सही सही, ओके बाय बाय. सो मैंने अपनी तरफ से 3 कम्युनिकेट किया, उधर से भी 3 आया, और वो कम्युनिकेशन का लेवल कितना हुआ? 3, जो कि 10 तक जा सकता था. वाई? बिकॉज मैंने उसे 3 पे जज कर दिया ना, राइट अवे. और हमारी आदत है, वी ट्राई टू जज अ पर्सन. वो बोलता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. लेकिन क्या? सो द बेसिक थिंग इज दैट आई नो वी डू दैट, बट बिफोर यू मीट, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, why don't you rate them as 10? अगर मैंने बोल दिया भाई ये बंदा 10 है before even talking to them, and I'm like, hey Rehan, how are you dude? It's so glad to meet you. You're like, ये इतना excited क्यों है? चलो कोई ना. हाँ भाई, it's so glad to meet you dude. कैसे हो? मैंने कहा amazing यार, tell me about yourself, what do you do? So हमारी लेवल का कम्युनिकेशन मैंने भेजा 10 पे, उधर से आया 10 पे, and when we'll both go, Rehan will be like, भाई क्या बंदा था यार, मजा आ गया, पहली बार मिले लेकिन ऐसी एनर्जी, नाइस. अब इस he will call me आगे से कभी हमारी बात होगी, so we'll always be at a level 10. तो you are the person जो तुम्हारी कम्युनिकेशन का लेवल ऊपर या नीचे डिफाइन करते हो. ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दुनिया ही ऐसी, सर मैं बात ही नहीं कर पाता लोगों से, लोग बहुत रूड हैं, सब मुझसे ऐसे बात करते हैं, सब मेरी तरह ऐसे होते हैं. तो यार अगर सब खराब है ना, तो शायद सब खराब नहीं है. खराब, ठीक है? मतलब वो क्या था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जौवन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई. सो यू नो, कभी कभी तुम में भी इश्यूज होते हैं. कितनी बढ़िया गालिब का था कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. तो समटाइम्स यू आर ऑल्सो द इशू. ठीक है? आई हैव दिस प्रिंसिपल विच आई टीच वेल, विच इज नोन एज द बॉब प्रिंसिपल. कि बॉब को लगता है पूरी दुनिया खराब है, लेकिन बॉब को खुद पे थोड़ा सा वर्क करना है. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. ऑलवेज रेट एनीवन यू मीट एज 10. तो तुम उस एनर्जी से कम्युनिकेट करोगे एंड यू विल हैव दैट एनर्जी बैक विद यू. क्लियर हुआ? थोड़ा ऐसे मुंडी हिला तो पता चले मुझे. ठीक है? थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. ओके, एक ये चीज हो गई. अनदर थिंग इज, ओके, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग. देखो मैं ना तुम्हें प्रैक्टिकल वो एकदम वैसी चीजें नहीं बताऊंगा कि जब किसी से कम्युनिकेट करो तो स्माइल रखो, एक थोड़ी अपनी उससे आई कांटेक्ट बनाओ. ये सब थोड़ी सी फालतू चीजें लगती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है? मैं तुम्हें कुछ प्रिंसिपल्स और बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि तुम नींव अच्छी बनाओ तो बिल्डिंग अपने आप बढ़िया बनेगी. ठीक है? Another thing which I want you guys to understand, and this is going to save many of your dying relations in your life. If you guys have relationships with other people, if you guys have good relations with your friends, with your family or anything, तो वहां पे एक गलती हम बहुत बड़ी करते हैं, that whenever we have fights with anyone, we attack the person and not the problem. समझ आई मेरी बात? और हमें करना क्या है? We have to attack the problem and not the person. अब सोचो मेरी किसी इंसान से लड़ाई हुई और पहले शब्द मेरे मुंह से क्या निकले? तेरे जैसा गंदा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तू है ही ऐसा, तेरे जैसे. मैं तो रिग्रेट करता हूं क्यों मिला मैं तुझसे. समझ रहे हो? नाउ व्हाट यू डिड, यू असैसिनेटेड देयर कैरेक्टर. और उसके बाद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू यू नो कि नहीं वो आगे से आगे बात करेगा तो ही मैं करूंगी, या मैं बोलूंगा तभी वो आगे करेगा. तुमने जब एक इंसान के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी ना, फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. बट व्हाट इफ वी गो अहेड एंड वी आर लाइक कि यार देख, आई लव यू एज अ पर्सन, तू इंसान 1 नंबर का है लेकिन तेरी हरकतें 2 नंबर वाली हैं यार. लाइक एज अ पर्सन यू आर अमेजिंग, बट योर बिहेवियर नॉट दैट गुड डूड, यू कैन डू सो मच बेटर. तो इससे तुम उसका कैरेक्टर नहीं खराब कर रहे हो, इससे तुम उसकी एक हरकत बता रहे हो कि आउट ऑफ 100 गुड थिंग्स इन यू, ये 2 चीजें उन सारी 100 चीजों को ना साइड रख देती हैं यार. बस यही चीज है, बस इस पे तू वर्क कर ले, बाकी तो तू हीरा है भाई. सो इमेजिन इफ यू ट्रीट अ चाइल्ड, घर पे बच्चों को क्या बोला जाता है? गधे कहेंगे, इतना सवाल नहीं बनता तेरे से. बट यू डोंट ट्रीट अ किड लाइक दैट मैन. उसकी खुद की इमेज बन जाएगी उसके दिमाग में, और बचपन में जो भी चीजें तुम्हारे साथ होती है दैट स्टेज विद यू फॉर योर लाइफ टाइम. और तुम लोगों को सबको ये बात पता होगी
देयर आर सम बिहेवियर्स ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर सिबलिंग्स और एनीथिंग जो जाने अनजाने में तुम्हारे अंदर आ जाती है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। हम बहुत जल्दी ये सारी चीजें पिक करते हैं। अगर तुम्हारी फैमिली में योर फादर इज द मेन कैरेक्टर जो कि सारे डिसीजंस लेते हैं, सो यू मे बी द काइंड ऑफ पर्सन जो कम असर्टिव होगा अपनी लाइफ में, जो लोगों को नो जल्दी नहीं बोल पाता होगा, जो हर चीज से बहुत जल्दी हाँ हाँ बोल देता होगा। व्हाई? बिकॉज तुम्हें पता चला कि पापा हमेशा डांटते हैं और ऐसा करते हैं, तो उनके सामने हाँ बोल दो, सब सही है। तो अब तुम लाइफ की हर सिचुएशन ऐसी हैंडल करते हो। व्हाई? बिकॉज बचपन में होगा तो हमेशा वैसे ही होगा। सो अगर एक बच्चे को भी डांट रहे हो, सो टेल देम कि ब्रो यू आर एन अमेजिंग किड, बट ये जो घर पे तुम दीवार पे ऐसे लिखते रहते हो ना, दिस इज नॉट अ गुड एक्टिविटी, और मेरे घर के अंदर तो ऐसा नहीं होगा। Like this, okay? So never and ever go around and assassinate a person's character. उसके बाद अच्छी conversations हो ही नहीं सकती, okay? What my point? So इसको लिख लेना अपने पास. This is something very phenomenal, that attack the problem, not the person, okay? Another thing which can help you in having good impact whenever you communicate anything is to learn the power of 3. Now what is the power of 3? Now understand this, okay? ये सुनने में अच्छा लगेगा, it's kind of a tongue twister जैसा, but listen to it और समझने की कोशिश करना. The power of 3, here it is. Tell them what you are going to tell them, then tell them, and then tell them what you told them. फिर से सुनो. Tell them what you are going to tell them, then tell them, and then tell them what you told them. जब भी किसी चीज को आपको किसी एक इंसान के दिमाग में रिटेन करवाना है ना, सो यू हैव टू रिपीट दैट थॉट हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम स्टार्टिंग में, फिर बीच में टेल देम, एंड देन लास्ट में टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम. ये होता है द पावर ऑफ 3, और ये सदियों से यूज होता आ रहा है. अभी भी अगर तुमने डर्टी पिक्चर क्या नाम है अपनी विद्या बालन जी की देखी होगी, तो उसमें क्या था, एक डायलॉग था काफी फेमस. क्या था वो? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. पावर ऑफ 3. आपने अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. एक किताब थी जिसका नाम था द 3 मस्केटियर्स. गांधी जी के भी साला 3 ही बंदर. घर पे टिंडे बने तो मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, 3 बार ही बोलते हैं ना. एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलता है? आई कैन, आई विल, आई मस्ट. तो कुछ तो है इस 3 में कि यू नो व्हेन दिस इट जस्ट हिट्स अस लाइक एनीथिंग. ठीक है? तो हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस, किसी चीज का इंपैक्ट डालना है, दैट अ पर्सन रिटेन्स इट, व्हाट यू हैव टू डू? रिपीट इट 3 टाइम्स इन फ्रंट ऑफ देम, एंड देयर आर मोर चांसेस कि एक इंसान त्रिमूर्ति बनाकर रखना है, राइट? जस्ट लाइक दैट, कि वो इंसान समझ जाए उस चीज को, है ना, कि भाई इसने 3 बार रिपीट किया तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया, तो मैं एक सेकंड पानी पीऊंगा, और मेरी तरफ मत देखो, ऑकवर्ड लगता है. राइट, ओके. एक और चीज, चैट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए. कैन यू गाइस टेल मी, आप लोग अपने आप को क्या समझते हो? सुनो, पूरा सुनो, क्या समझते हो वैसा नहीं, बट व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और प्लीज वो बीच वाला मत चूज करना, एम्बिवर्ट, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता. ये क्या है? अपना एक बताओ ना, कहाँ हो तुम, उधर हो या इधर हो. एंड लेट मी टेल यू, एक सेकंड रुक जाओ. Why do you guys call yourself ambivert? Because you're like कि मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बात कर लेता हूँ, बट नए लोगों के साथ नहीं कर पाता. लाइक सभी वैसे है ना, दोस्तों के साथ तो सभी कूल रहते हैं, सभी अच्छे से बात करते हैं, नए लोगों से ही तो इशू आता है. सो इंट्रोवर्ट ऑन एन एक्सट्रोवर्ट, पुट इट. इंट्रो, एक एक्स्ट्रो मिला, 2 एक्स्ट्रो मिले, पर अकेले भी मजे से रह लेता हूँ. राइट, सही रहना चाहिए भाई. इंट्रोवर्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट. फील बेटर टू बी अलोन. ठीक है, हाँ बेटर तो ठीक है, ठीक है. अब मेरी बात समझो, ठीक है? और जितनों ने कैमरा बंद करे, तुम्हारे घर आके मारूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? टर्न ऑन योर कैमरा जल्दी जल्दी. हाँ जी. सो अब देखो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, ठीक है? और ये तुम्हें बात दिल पे लगेगी, तो कहीं ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, सच में लगेगी, ठीक है? तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो, तुम फट्टू हो. मानो इस बात को, एक सेकंड के लिए पहले मानो, ठीक है? Just because you don't have the social skills to interact and communicate with other people, बहुत सारे लोग, not every person, but बहुत सारे लोग अपने सामने टैग लगा लेते हैं that I am an introvert. तो अब कोई तुमसे आके बोला कि अरे अमन, तुम स्टेज पे नहीं जा रहे हो, तुम लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे, इतने सारे लोग हैं, तो तुम बोलोगे अरे यहाँ लिखा हुआ है ना इंट्रोवर्ट, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं तो बात ही नहीं कर सकता. लाइक अच्छा, फिर तो ठीक है. So why do I call
वो फट्टू वाली चीज, बिकॉज लेट्स कॉल अ स्पेड, ठीक है, जो है पहले उस चीज को अपन बोलते हैं कि हाँ ये इशू है हमारे अंदर, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। तो जो फ्लॉज है उनको एक बार एक्सेप्ट करो दैट यस, जिस दिन तुमने सोशल स्किल्स सीख लिए, द पीपल हु आर कॉलिंग देमसेल्व्स इंट्रोवर्ट, तुमसे ज्यादा कोई बात नहीं करेगा, एंड दैट इज अ रिटन ट्रूथ। यू जस्ट नीड दैट कंफर्टेबल सिचुएशन अराउंड यू जहां तुम बोल सको बहुत अच्छे से। द मोमेंट यू लर्न हाउ टू conversate, how to initiate a conversation, how to keep the conversation going, how to ask meaningful questions and leave an impact, कि लोग बोले भाई मजा आ गया यार, क्या बात करेगा बंदा, तो वो फीलिंग ही अलग होती है जब तुम्हें पता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं, बिकॉज भाई तुमने काम भी ऐसा किया। सो नाउ यू विल गो अगेन एंड अगेन टू हैव दैट फीलिंग। द मोमेंट यू लर्न ऑल ऑफ दीज स्किल्स, सारी चीजें अपने आप चली जाएंगी। इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन अगर तुम समझोगे तो तुम्हें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। कार्ल यूंग का नाम सुना है आप लोगों ने? ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, काफी बड़े लेवल पे। ही गेव अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? जो कि अकेले भी खुश रह लेते हैं, बट दे रिचार्ज देमसेल्व्स व्हेन दे आर अराउंड पीपल। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो लोगों के साथ भी बात करके खुश रह सकते हैं, बट they recharge themselves when they are alone. That's what it is. तो सोनू, जिसने आपने बोला था कि अकेले भी खुश रह लेता हूँ, so तुम अपने you are actually an introvert because you enjoy yourself when you are alone. उसमें बात करने कोई नहीं कि मुझे लोग नहीं पसंद है, मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। It is just that you enjoy yourself that way. So you know how can you learn these skills, bro? Go out there, find courses. मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, I have a free course on public speaking. इंस्टाग्राम पे जाना, लिखना कोच अमन शुक्ला, मेरे लिंक इन बायो में आई हैव अ कोर्स दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं नहीं तारीफ करना चाहूंगा बट इट इज डैम गुड, ठीक है। वो पेड कोर्सेज में जाता, बट आई एम लाइक अपन अच्छे इंसान हैं, ठीक है, चलो देते हैं लोगों को और लोगों को बताते कि है क्या, बिकॉज इफ यू मेड समथिंग विच इज गुड विच कैन एक्चुअली हेल्प अदर पीपल, तो आई वांटेड टू गो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और प्लीज उसको हल्के में मत लेना कि फ्री है तो कभी भी कर लेंगे, तुम कभी नहीं करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में मेरे पास 2000 साइनअप्स आए थे और अगले 1 महीने बाद 25 लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया था। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फ्री है, और जिन 25 लोगों ने किया तो उन्होंने मुझे बताया था हाउ इट वाज। कोई 40%, कोई 50, कोई 60 पे रुक जाता, बट आई वांटेड टू कंप्लीट इट। 2 घंटे का है एंड यू कैन लर्न मेनी ऑफ दी स्किल्स फ्रॉम देयर, ठीक है। मेरी एक वर्कशॉप है आई थिंक दिसंबर एंड में, तो वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही है पूरा, और वो 1-2 दिन की नहीं, इट इज अ 30-day वर्कशॉप जहां तुम प्रैक्टिस भी करते हो मेरे साथ, सीखते भी हो, एंड इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस यू आर गोइंग टू स्पीक। तो मैं तुम्हें सिखाता भी नहीं हूँ, तुम्हें ऑडियंस के सामने परफॉर्म कराता हूँ। दैट्स हाउ यू वर्क ऑन योर फियर्स। तो यू कैन लर्न ऑल ऑफ दीस थिंग्स फ्रॉम देयर, ओके। तो मैंने तुम्हें बताया टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, और भी बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या समय हो रहा है? 7:25. Let's give an half an hour to let's open the ground for some Q&A, क्योंकि मैं तो तुम्हें बता ही दूंगा, but maybe I can help you better when I answer some of your questions personally, so maybe that can help. So Yogesh, if you can give people the chances, and if you have any, you guys can go ahead. Exactly, sir. We have some questions in the chat box as well. People are asking like how to maintain interest in the public. In like basically stage पे बात कर रहे हैं, right? Yeah. Right. So there are certain skills which you need to learn, and one of the skills जो जिससे तुम अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट बना के रखते हो वो है ठीक है ये एंटिसिपेशन। लेट देम कीप कमिंग, कि क्या आने वाला है। अभी आप लोग ऐसे हो गए ना, क्या, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर तुम भड़बड़ा के अपनी पूरी स्पीच, अपनी टॉक खत्म कर दोगे तो ऑडियंस भी लाइक थोड़ा सुनेगा, थोड़ा नहीं सुनेगा, चल देगा। बट व्हेन यू गिव अ पॉज, अच्छा अब सोचो आप स्टेज पे बोल रहे हैं, लाइक दिस इज हाउ दिस इज हाउ और आप देख रहे हो ऑडियंस में 10-12 लोग से बात कर रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, एंड यू आर कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग, और अचानक से आप रुक गए। ऑडियंस बोली कह रहे क्या हुआ, रुक क्यों गया, सबका ध्यान आपके ऊपर, देन स्टार्ट राइट अवे। व्हाई? बिकॉज जैसे शांति होती है ऑकवर्ड हो जाता है, और ऑकवर्ड होता है सब देखते हैं, अरे कोई तो बोले, एंड देन सडनली यू स्टार्ट स्पीकिंग एंड यू हैव द अटेंशन। सो क्रिएटिंग सस्पेंस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। मैं अभी आपको बता नहीं सकता हाउ डू यू डू दैट, बट दिस इज अ स्किल, हाउ यू लर्न हाउ टू क्रिएट एंटिसिपेशन विद अदर पीपल, एंड दैट कैन बी डन अमेजिंगली व्हेन यू लर्न स्टोरी टेलिंग इन अ गुड वे। कहानियों में तो सबसे बेस्ट सस्पेंस होता है, राइट? पता है फिर उसने क्या किया, और तुम रोक दो और सबको देखो, और सब ऐसे देख रहे हैं लाइक अब तो तुम मेरे हत्थे पे हो, मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, राइट? There was a
एक एक जगह मैंने प्रेजेंटेशन दी थी और वहां पे मैंने कहानी सुनाई थी और उस कहानी को मैंने 12 मिनट खींचा था, 12 मिनट्स, एंड एट द एंड ऑफ 12 मिनट्स जब मेन पार्ट बताना था ना, मैं रुक गया था एंड आई टोल्ड देम गाइस मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या है, बट दिस इज हाउ यू क्रिएट सस्पेंस, एंड एवरीवन वाज लाइक अबे क्या कैसे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 लोग लास्ट तक रुके थे, उन्होंने बोला अमन भाई पैसे ले लो पेटीएम, लेकिन बताओ तो क्या बोला था उसने। सो दिस इज, पता है ऐसा होता है दैट पीपल आर लाइक बता दो व्हाट इज इट। So when you create suspense, people are going to take interest in what you say. So make sure you give pauses whenever you can, as much as possible, and that way you can have their attention. Also, you have to be conversational instead of just telling them things. आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट टेलिंग यू थिंग्स, तुम जवाब दे रहे हो, यू आर पुटिंग चैट्स, तुम अपनी मुंडी हिला रहे हो, यू आर स्माइलिंग, तो मुझे भी तुम्हारी तरफ से रिएक्शंस मिल रहे हैं। सो कम्युनिकेशन is not a monologue. Public speaking is not a monologue, it's a dialogue. Die means between two people. तो तुम और तुम्हारी ऑडियंस जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे then it's not. तो तुम्हें बात करनी है उनसे, because everyone talks, okay? So talk to your audience जितने अच्छे से हो सके इन अ कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। इसीलिए तो मैं भाई पिछले 1.5 घंटे से तुम्हें कुछ सिखा थोड़ी रहा हूँ बैठ के। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस व्हाटएवर द एक्सपीरियंसेस इन अ वे कि तुम उससे रिलेट कर पाओ। और उसका बहुत बड़ा रीजन है दैट आप ही लोग की एज का हूं, सो आई नो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच माय ऑडियंस वांट्स। तो अपनी टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है। हु आर दे, व्हाट आर देयर लाइक्स, व्हाट आर देयर डिसलाइक्स। जब तुम्हें वो सारी चीजें पता चल गई, यू आर लाइक ओके ही वांट्स दिस, आई एम गिविंग हिम दिस, अमेजिंग, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। सो दैट्स दोस आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन यूज टू हैव द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। Thank you so for that one. And there is one more question. Many a times we feel ourselves, lower than others, and we rate others better than ourselves. हाँ, So in what context, like are we talking about in general life वाला चीजें या when you are in it situations? can be in any context, sir. Like in anchoring as well, in public speaking, general case. Okay, so sometimes you don't feel कि मैं उतने नेक्स्ट लेवल का इंसान हूँ कि मैं कुछ चीजें उखाड़ पाऊंगा लाइफ में। अगर बेसिक लैंग्वेज देखे तो अपन यही है। तो द थिंग इज कि वो कहीं ना कहीं एक सच बात है, राइट? इट्स ट्रूथ। कहीं ना कहीं यू आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट, यू नो दैट आई एम नॉट दैट गुड, और अगर मैं उतना अच्छा होता तो शायद मैं वो चीजें कर लेता। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, दैट फाइंड आउट व्हाट योर सुपर पावर इज। तुम अपनी एक चीज में इतने बढ़िया हो जाओ, और कॉन्फिडेंस का यही खेल है योगेश, एंड एवरीवन हु हैज दिस क्वेश्चन, दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एट वन थिंग, और वो चीज बाकी सारी चीजों में रेडिएट होगी। सब चीज में होने की जरूरत नहीं है, एक चीज में बनो और उस चीज का कॉन्फिडेंस बाकी चीजों में आ जाएगा। सजेशंस टू इंप्रूव इंग्लिश, यार इंग्लिश का मुझसे मत पूछो, मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज देख देख के, सबटाइटल्स देख देख के सीखा है, और कोई वो नहीं है मेरे पास। सो आई कैन टेल यू ऑन दैट, बट यस ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, क्या बता रहा था मैं? That's सेल्फ एस्टीम और ये सब वाली चीजें, राइट? हाँ, तो तुम किसी एक चीज में बहुत अच्छे बनो, जो मैंने बोला था सेल्फ रियलाइज मीडियोक्रिटी वाली चीज। सो डोंट बी मीडियोकर एट एनीथिंग। किसी एक चीज में तगड़ी रिसर्च करो, हैव गुड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नो कि जब लोग मुझसे बात करेंगे, सो आई कैन हेल्प देम इन अ वे पॉसिबल। सो अपनी वोकैबुलरी में ये लाइन डालो, हाउ कैन आई हेल्प यू। द मोमेंट यू आर देयर टू हेल्प अ पर्सन, तो लोग तुम्हें आके बताते हैं हाउ यू कैन डू दैट, एंड व्हेन यू डू दैट तुम अपने बारे में अच्छा फील करते हो। और एक अगर काफी प्रैक्टिकल चीज बताऊं तो देखो, ये तुम्हें लगेगा यार ये तो पता ही है, तो एक बार कर लो इसको। दैट इज, बस आज अगर तुम ये कर लो, मैं तुम्हें वादा कर देता हूं, टुमारो यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। बस तुम कर लेना। आज रात को एक बार सोने से पहले जस्ट राइट 6 थिंग्स विच यू वांट टू अकॉम्प्लिश टुमारो। बस अपने 6 गोल्स लिख लो अगले दिन के लिए। राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अच्छे से डिफाइन करके। नंबर 1 आई हैव टू डू दिस दिस, नंबर 2 6 लिख लो, और उसके आगे बॉक्सेस बना लेना, और अगले दिन वो सारे काम कर लेना। एंड टिक 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। एंड द मोमेंट यू टिक ऑल ऑफ इट, तुमने एक अच्छी वाली सांस लोगे यार, लाइक हाँ, जो चीज मैंने खुद को बोली वो चीज मैंने कर ली। दैट इज हाउ यू ट्रस्ट समवन एल्स, राइट? अगर मैंने आयुष को बोला आयुष भाई तू ये काम कर लेगा, आयुष ने बोला हाँ भाई बिल्कुल, और अगले दिन आयुष ने कर लिया, सो आई विल ट्रस्ट आयुष, बिकॉज जो इसने बोला वो इसने किया। सो हाउ डू यू ट्रस्ट योरसेल्फ? जो तुम बोलोगे वो तुम खुद कर लो। तुम्हारा वो जो सेल्फ एस्टीम वाली जितनी भी चीजें ना, वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर चली जाएंगी। बस तुम खुद को झूठ बोलते हो, इस कारण यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। एक्चुअली तुमने बोला कि कल ये कर लेंगे, रात तक बोला यार आज फिट नहीं किया। सो दैट्स हाउ द सर्कल गोज।
एक दिन 6 चीजें लिखो। तो अब तो मुझे पता है सेल्फ एस्टीम ऐसे ही बढ़ता है, तो चार्ली, तो अब मैं सारी चीजें उसमें डाल देता हूँ कि सुबह उठ के ब्रश करना है, करके टिक करो, अच्छा लगता है, चलो कुछ तो ठीक हुआ। सो पुट स्मॉल थिंग्स देयर जस्ट फॉर योर सेक, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, अपने लिए करो। दैट्स हाउ यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। और फिर जब लाइफ में कॉन्फिडेंस होगा तो वो चीज आपकी स्पीकिंग में भी शो होगी। किसी एक चीज में बस शो करना। यस Sir, I have heard a lot of things about subconscious mind. यस Now, how can we fool that mind so that our confidence can be raised? मेरा फेवरेट टॉपिक। हाँ चलो इस पे बात करते हैं अच्छे से, ठीक है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस फलाना ढिमकाना, इसको साइड रखते हैं। पहले एक चीज समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। थॉट्स बिकम थिंग्स, ठीक है, ये चीज सबसे पहले समझो। थॉट्स बिकम थिंग्स। अ मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे अलोंग। नाउ स्टार्ट एनालाइजिंग योर थॉट्स कि तुम 60 to 70% दिन में सोचते क्या हो। व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू थिंक अबाउट? डू यू थिंक अबाउट हाउ, लाइक नॉट हाउ बट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तुम्हें ना हाउ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, तुम सबसे पहले व्हाट तो डिफाइन करो बहुत अच्छे से। मोस्ट पीपल डोंट गेट व्हाट दे वांट इन लाइफ बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ स्पेसिफिकली। लोग बोलते पैसा चाहिए, ये ले 10 रुपए मिल गया, जा पैसा तो दे दिया ना। कैन यू स्पेसिफाई व्हाट इट इज दैट यू रियली रियली वांट? सो व्हाट आई डिड वाज, मेरे सामने एक डायरी रखी, लेकिन मैं जाऊंगा तो रिंग लाइट बंद हो जाएगी और लाइट बंद चली जाएगी, तो मैं उठूंगा नहीं, बहुत लूज है। तो उस डायरी में आई यूज्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑटो सजेशन। क्या होता है, जब तुम अपने दिमाग को एक चीज बार बार रिपीट करते हो ना, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। तुम्हें किसी, बोलते ना कि झूठ बार बार बोलो तो वो सच हो जाता है, तुम्हें सच लगने लगता है। तो तुम सच भी बार बार बोलोगे तो उस पर तुम आराम से बिलीव कर ही लोगे। तो अगर अपने दिमाग को कुछ भी बिलीव करवाना है, व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू गिव इट रिपीटेड सजेशंस, हर दिन, ईच डे, एवरी डे, एज मच एज यू कैन। अब मेरा गोल था टेडेक्स पे बोलना है भाई। अब जब तुम भी कभी टेडेक्स टॉक देखते हो, तुम्हें लगता है ना यार कभी अपने को मौका मिला अपने को भी बोलना है, सो आई वाज लाइक चाहिए तो। सो आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेडेक्स आएगा, कभी आसपास आ जाए हो जाए। ऑन सडनली वन डे आई गेट दिस थिंग कि मैं जहाँ रहता हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे एक कॉलेज है BIT, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने टेडेक्स का लाइसेंस लिया है। आई एम लाइक व्हाट, बेटा ये तो नहीं जाने देना। ठीक है, अब मेरे दिमाग में आ गया चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। अब मैंने सारे जुगाड़ लगाने चालू किए, कौन कहाँ कैसे एवरीथिंग। एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट पुट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू टेस्ट कि ये सच में होता है कि नहीं। काम था, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं था, पीछे 1 साल मैंने काम कर चुका था, अपना काफी ब्रांड बनाया था मैंने फॉर दैट सेक। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं हर दिन सोने के पहले आई वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट माय गोल वाज। तो मैं हर दिन लिखता था, I am so happy and grateful now that I have been selected as a TEDx speaker for the BIT Durg event. That's it. And for every night for the I think 45 to 50 days मैंने लिखा और रोज लिखता था। And not just writing. When you write it, you have to see yourself. जो visualization मैंने बोला था ना कि भाई जब मैं स्टेज पे जाऊंगा, लोग देखेंगे, बोलेंगे भाई अमन शुक्ला, मैं स्पीच दूंगा, बोलेंगे मजा आ गया, साइन दो, सिग्नेचर दो, एवरीथिंग आई यूज्ड टू इमेजिन। और इतना बढ़िया फील होता था when you do that कि तुमने वो चीज कर ली, राइट? तो वो चीज तभी होती है जब तुम अपने दिमाग को ऑटोमेटिकली सजेशन देते रहते हो। और ये जो है ना, इसको कम मत समझना कभी। ये एक ना बेलगाम घोड़ा है, तुम्हें बस डायरेक्शन देना है। एक बार दे के देखना, यू विल अट्रैक्ट थिंग्स। भले कुछ लोगों को ये चीज लगे अबे अट्रैक्ट कैसे, क्या कर लोगे, बट यू जस्ट सी। तुम्हें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे होगा क्या होगा, इस पे कुछ नहीं फोकस करना है कैसे होगा, तुम बस बताओ क्या, पहले स्पेसिफाई करो क्या, उसके बाद अपने आप यू विल फाइंड दोस थिंग्स, अपने आजू बाजू तुम्हारे पास वो चीजें आती जाएंगी। एंड आफ्टर 51 डेज मैं रोज हमेशा सोचता था कि मेरे पास मेल आएगा सिलेक्शन का, ऐसा होगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा और ऐसा ऐसा होगा, एवरीथिंग। ऑन 51st डे, ठीक है, क्या होने वाला था, मैं चल रहा था नॉर्मली, छत पे टहल रहा था, नीचे आया, बैठा बेड पे, और मैंने अपना मेल खोला, मैंने देखा टेडेक्स स्पीकर कंफर्मेशन लिखा है। मैंने कहा हो गया है, लेकिन मैंने तो सोचा था मैं रिलोड करूंगा तब आएगा, तो मैंने फिर रिलोड किया, मैं कहा अब टॉप पे आया। मैंने कहा अब जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। इन देन आई ओपन इट और उस पे लिखा था अमन, या जो भी अमन शुक्ला, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज द टेडेक्स स्पीकर फॉर द BIT दुर्ग इवेंट। मैंने ऐसे माइक ड्रॉप की तरह ऐसे किया, मैंने कहा हो गया, चला। बहुत अच्छे से खुश था पूरा दिन, पूरी रात तक मैं। तो मतलब वो चीज मेरे लिए कैसी थी कि हाँ यार, आई एक्चुअली विजुअलाइज्ड इट ईच एंड एवरी डे एंड आई वर्कड फॉर इट टू। मतलब मैंने जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उससे दबा के रिलेशंस बनाए, मैंने ऑर्गेनाइजर का नंबर लिया, उसको सेव कराया अपना नंबर, खुद उसका नंबर सेव किया, और अपनी स्टोरी पे हर दिन मैं अपने जो पुराने इवेंट्स कभी अलग अलग कॉलेज के करता था, हर दिन स्टोरी डालता था। और मेरा ऑर्गेनाइजर
मतलब थर्ड या फोर्थ व्यूअर होता था उस स्टोरी पे। तो मैं लगातार वो देख रहा था कि ये ऐसा करता है, ये यहाँ पे भी एक क्रेडिबल इंसान है, ये वो। देन मैंने बहुत प्यारा सा पोर्टफोलियो बनाया था, वीडियो काइंड ऑफ था वो, बहुत बढ़िया सा। तो ऑल ऑफ एन ऑल इट हैपेंड एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई डिड इट विद दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला थिंग, दैट इन ऑर्डर टू हैव व्हाट यू वांट यू नीड टू नो व्हाट यू वांट। और वो कैसे पता चलेगा? जब इसको रोज बताओगे वो चीज, एंड ट्राई टू डू दैट। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट प्रेजेंट टेंस में देखनी है सारी चीजें। ऐसा नहीं कि होगा, हो गया अब हो गया, एंड यू हैव टू सी योरसेल्फ डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब तुम वो करोगे तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं यार। बट काम भी करना है, खाली हवा में नहीं होंगी चीजें, ठीक है? दैट्स हाउ इट्स डन। Sir, in starting you told that you will be telling us one mantra. क्या बताने वाला था? किसके बारे में बोला था मैंने? You did not tell us. नहीं, किसी तो चीज के बारे में बोला था कि किसी चीज के बारे में। Scientific study. सॉरी, The scientific study about the introduction. The coffee with color introduction. अच्छा हाँ वो वाला, ओके ओके, ऐसा Sir, बता। sorry to interrupt you, but I have one question, not related to public speaking, but how did you make the organizer save your number? हाँ, क्या होता है कि ही वॉज, वो ऑर्गेनाइजर कौन था? बच्चे ही होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं देखा जाए तो। सो ही, वो मेरे से जूनियर था, ठीक है? ऑब्वियसली मैं पास आउट था और वो मेरा जूनियर था, एंड मेरी बहन का ही कॉलेज है वो, तो वहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जो जाते हैं जो मेरे जान पहचान के भी हैं। सो 3-4 अलग अलग लोगों ने उस ऑर्गेनाइजर को पहले बोला था, बिकॉज दे वांटेड 2 लोकल स्पीकर्स। तो उन्होंने जाके उसे बोल दिया था कि भाई अमन शुक्ला करके ही इज डूइंग गुड ऐसा ऐसा, तो उसके बारे में देखना इधर उधर। तो ही सेड अच्छा, और फिर जब मैंने इसे कांटेक्ट किया तो ही सेड अच्छा सर आप ही हो गया अमन शुक्ला? मैंने कहा हाँ हाँ। तो ऑलरेडी 4-5 लोगों ने उसके दिमाग में वो बात डाल दी थी जो कि मेरे सर्कल के थे। सो ही हैड ऑल ऑफ दिस। तो मैंने कहा डूड कैन यू सेव माय नंबर सो दैट कभी भी कॉल आए तो तुम डायरेक्टली उठा लो, बिकॉज मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है कांटेक्ट करने का। तो बोला हाँ हाँ भैया बिल्कुल। तो वो मुझे भैया बोलता था उस लेवल पे, एंड देन सिलेक्टर वही था, वही सिलेक्ट कर रहा था, बट रिलेशंस अच्छे बना लिए थे उससे मैंने इनिशियली। कभी कभी होता था तो मैं पूछ लेता था, ब्रो कैसी चल रही है तैयारियां, ईच एंड एवरीथिंग। तो कुछ तो तुम्हें अपनी तरफ से भी करना ही पड़ेगा, हर चीज ऐसे नहीं मिल जाती। सो नॉर्मल रिलेशंस बनाने पे थोड़ा ज्यादा काम करना है। हाँ, एक सेकेंड यार। राइट, तो वो जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो पता है मैं चालू कैसे करता था? नीचे से, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। फिर उभरते हुए सितारे, हमारी आंखों के तारे, दुलारे, पढ़ाई के मारे। फिर ऊपर, प्लीज हेल्प मी वेलकम, ही इज नन अदर देन मिस्टर अमन शुक्ला ऑन द स्टेज। और वो बहुत अच्छे से काम करता था। तो बाद में मुझे क्या पता चला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन योर ऑडियंस। हमेशा 3 टाइप के लोग होते हैं। उसमें से एक होते हैं कैनिस्थेटिक। मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है कैनिस्थेटिक, ऑडिटरी एंड विजुअल, ठीक है? कैनिस्थेटिक मतलब जिन लोगों को इस तरह बातें सुनना अच्छा लगता है, जिन्हें लगता है कि जब लोग प्यार से धीरे धीरे बात करें तो उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? ऑडिटरी कौन होते हैं? जिनको आवाज में जब तक वॉइस मॉड्यूलेशन ना हो, जब तक कुछ थिरकन मचकन ना हो, तब तक उन्हें मजा नहीं आता। और विजुअल वो लोग होते हैं जिनको ऐसे करके, ऐसा वाला टोनी रॉबिन्स की तरह ऐसे ऐसे करके सुनाते हैं, तब उन्हें मजा आता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि वो जो पार्ट था ना वो ऐसे तो चालू होता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। तो कैनेस्थेटिक बोलता है यार ये तो अच्छा स्पीकर है, ये तो मेरी तरह बात करता है, नाइस। फिर आते हैं उभरते हुए सितारे, हमारी आंखों के तारे, दुलारे, पढ़ाई के मारे। तो ऑडिटरी बोलता है अरे यार कैनेस्थेटिक जो तो सही कह रहा था, ये तो सही में अच्छा बोलता है। कैनेस्थेटिक बोलता है हाँ मैं तो कह ही रहा था। फिर प्लीज हेल्प मी वेलकम, ही इज नन अदर देन मिस्टर लाला। अब विजुअल उठता है, बोलता है अरे भाई तुम दोनों तो एकदम सच्ची बोल रहे थे, तो क्या बंदा भाई, मजा आ गया मजा आ गया। तो बाद में वो चला अच्छा ये तीनों टाइप की ऑडियंस, तीनों टाइप के लोग होते हैं, और इन तीनों टाइप की ऑडियंस को मैं एक ही लाइन पे केटर कर देता था, नीचे से ऊपर। तो अगर आप देखोगे कि जो भी इतने बहुत बढ़िया बढ़िया गाने इतने वायरल होते हैं, वो चालू धीरे से ही होते हैं और लास्ट में खत्म कैसे होते हैं, मजा आ गया यार। सो आप एमिनेम का एक सॉन्ग था आई थिंक 8 माइल, एमिनेम के सारे गाने दे स्टार्ट विद यू नो वेरी लो काइंड ऑफ ट्यून एंड लास्ट में एकदम नेक्स्ट लेवल पे एंड होते हैं। सो दोस आर द काइंड ऑफ सॉन्ग्स व्हिच पीपल लव, क्योंकि हर टाइप के ऑडियंस को वो चीज केटर करती है, तो ज्यादा लोग उस चीज को सुनते हैं। सो यस दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से, ठीक है? एनीथिंग एल्स योगेश एंड एनीवन आउट देयर? सवाल जवाब? Now I would like to ask audience to ask the questions if you have any doubt regarding to anything. Yes, anything you want to ask something? Excuse me sir, I want to ask you something. Like हमको कैसे पता चलता है कि हमारी ब्रांड वैल्यू क्या है? As you said कि आपने कॉलेज में कुछ
वेबिनार सेमिनार्स होस्ट करे थे, तो हाउ डू यू गेट टू नो कि मेरी ब्रांड वैल्यू ये है, मुझे इतना चार्ज करना चाहिए अपनी ऑडियंस, मतलब लाइक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे कितना चार्ज करना चाहिए? इज इट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और आप कैसा काम कर रहे हो, दोनों में से किस चीज पे डिपेंड करता है वो चीज? ठीक है, तो मैं ना आपको एक चीज क्लियर करता हूँ अक्षिता, दैट मैंने स्टार्ट किया था पिछले साल जून में अच्छे से ये सब कुछ करना, है ना। एंड इस साल जून तक, मतलब पिछले एक साल से, पिछले जून से इस जून तक मैंने सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए कमाए थे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तो जितना आई यूज टू वर्क फॉर फ्री। जो मैंने 70 वेबिनार्स किए थे, ऑल ऑफ देम वर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मुझे करना था आगे से। इट वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू। तो इनिशियली तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले, ये लिख के रख लो। इनिशियली कभी तुम्हें नहीं मिलेंगे पैसे। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब तुम अपनी ब्रांड वैल्यू बना लेते हो, तब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, तो मैं अभी तक क्लियर नहीं हूं कि अपने लाइफ उसमें मैं क्या प्राइसिंग रखूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट। पहले कॉलेज वॉलेज में तो कोई तुम्हें पैसा देने नहीं वाला व्हेन यू वर्क फॉर दैट। और सेमिनार जो हम करते थे दूसरी कंपनीज के लिए, वहां पे मैं खुद काम करता था उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाउ व्हाई विल दे पे मी? मैं ही उनके लिए काम करता, आई यूज्ड टू गेट द सेल्स फॉर दैट, और फिर उससे कुछ कमीशन मुझे मिलती थी। तो वहां पे आई जनरेटेड जीरो इनकम। जो इनकम मेरी बनी हो पिछले 4 महीने से ही अच्छी होनी चालू हुई है, बिकॉज आई हायर्ड अ कोच जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरा बिजनेस सेटअप करवाया एंड एवरीथिंग, एंड देन आई चार्ज अदर पीपल। तो मतलब इनिशियल चार्ज विच आई डू इन वन-on-one कोचिंग, दैट्स फ्रॉम $250 to $300 से वो चालू होता है। इट्स अ 6-week कोर्स, मतलब मेरे साथ आप करते हो सारी चीजें, तो 6 weeks का रहता है। सो दैट्स हाउ, लाइक यू शुड चार्ज हाई, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज एक स्किल का रिजल्ट तुम पैसों में कैसे दिखा सकते हो? क्योंकि आज मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाई, वो तो आपको 5-6 साल बाद उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जब आप परफॉर्म करोगे, प्रमोशंस मिलेंगी, एवरीथिंग। तो इसका रिजल्ट ऐसे तुरंत नहीं मिलता है। सो इट्स अ स्किल बेस्ड, तो इस पे तुम कोई प्राइस नहीं लगा सकते। इट इज अप टू यू, व्हाट डू यू थिंक यू आर वर्थ। तो मेरे हिसाब से $250-300 कुछ भी नहीं है। 20-21 हजार रुपए लगा के तुम अपनी लाइफ के लिए पूरी स्किल सीख रहे हो। सो दैट इज समथिंग वर्थ डूइंग। और वेल, काफी लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते, टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली। एंड विद दैट आल्सो आई वुड लाइक टू टीच सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर इफ समवन इज ऑफरिंग एनीथिंग आउट देयर सीखने के लिए, तो कुछ भी, अपने ऊपर पैसे डालने से पहले 2 मिनट मत सोचना। क्योंकि तुम बाकी चीजों बहुत अच्छे से ले लेते हो, बट खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने में कोई 1000 रुपए मांग ले, लाइक 1000 रुपए यार बहुत हो जाएगा, मेरे महीने खर्चा निकल जाएगा। बट वही 1000 रुपए तो तुम शायद जाके स्टारबक्स में 2-3 लोग ऐसे ही जाके खत्म कर दो। लाइक टू बी ऑनेस्ट, रियली मैं भी करता था। मतलब सीसीडी में जाके, भाई 250 रुपए की कॉफी कौन पीता है? तुम्हारा भाई पीता था, समझ रहे हो। फिर जब दिमाग आया कि भाई तुम यही 10-15 रुपए की पी के तुम कहाँ कहाँ अच्छी जगह लगा सकते थे। सो इसका रिलेशन थोड़ा आगे जाके होता है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे भी हो, यू गाइस शुड गो फॉर इट। कोई भी वर्कशॉप हो, कोई भी वेबिनार हो, पे फॉर इट, जाओ और सीखो। आज आप यहाँ पे आए, यू गेव आई थिंक अराउंड योर 1.5 hours, और आई थिंक काफी नॉलेज और काफी एक्सपीरियंस यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर एंड यूज इट इन योर लाइफ। तो समझो, जब तुम्हें फ्री में ऐसी नॉलेज मिल सकती है, तो तुम जब पेड करोगे, शायद तुम क्या क्या सीख जाओ उस इंसान से। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी आके ज्वाइन करो, बट मैं कह रहा हूँ जहां पे मिले वहां जाके ज्वाइन करो। जस्ट गो फॉर इट एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। सो दैट वाज इट, अक्षता। थैंक यू। Yes. One more हाँ जी। question from my side कि आपका क्या की पॉइंट है इफ इन ऑडियंस आप लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो एंड आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, इवन इफ कि वो इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन आपका माइंड लॉस हो जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो आपका की पॉइंट क्या है, आपका सेवियर पॉइंट क्या है कि जिससे आप सेव कर सकते हो खुद को? कि होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। I'm getting your point. तो क्या होता है, जैसे कभी किसी ने कुछ पूछा और मुझे नहीं पता ठीक है, तो पहले तो तुम ये बोल सकते हो, इनिशियली तो मैं बोल देता था कि यार आई एक्चुअली डोंट नो अबाउट इट दैट मच, क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में जा ही रहा हूँ बहुत अच्छे से, और भी कुछ रिसर्च करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट कभी ऐसे कोई लाइव इवेंट हो रहा है जहाँ पे लाइव ऑडियंस एंड एवरीथिंग, तो वहां पे कोई ऐसा कुछ पूछ ले आउट ऑफ नोवेयर मेरी फील्ड का, जिसका जवाब उस समय मेरे दिमाग में ना है। तो तुमने वो तनु वेट्स मनु देखी है ना, उसका शायद 2 या फर्स्ट पार्ट में, योर क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी वाला जो होता है। तो ना तुम्हें सबसे पहले तो अप्रिशिएट दैट पर्सन, दैट यार, अरे यार तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। लाइक मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा था, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। मैंने ना 2-3 चीजें लिख रखी हैं। आप एक काम करो, आफ्टर द इवेंट मुझसे मिलो, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। और उतने टाइम में तुम्हारे पास टाइम है 5-7 मिनट, जब तक तुम खोजो और जो है उस इंसान को बता सको। तो ये कभी कभी मैंने ये सब चीजें कर रखी हैं। तो तुम्हारे पास होने चाहिए कुछ वेपन्स विच यू नो आर फॉर द लास्ट रिजॉर्ट, कि कुछ नहीं हुआ तो ये तो है ही अपने पास। तो दैट्स हाउ यू डू इट। और कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, कभी ज्यादा इधर सवाल आ जाए ना, इधर उधर जवाब देके कुछ मोटिवेशनल आखिरी में दे दो, लोग खुश हो जाते हैं, अरे हाँ यार ये तो क्या बोला है, ऐसा काइंड ऑफ। तो ये हम भारतीय लोगों का है, कुछ अच्छा बोल दो तो खुश हो जाते हैं।
बाहर वाले लोगों को बोलेंगे यार बट आई डिडंट गेट माय आंसर, बेइज्जती। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट ऑन द स्टेज, लाइक अगर स्टेज पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है कि हाँ। ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे क्या देखो एक चीज तो सब लोग बोलते हैं कि तुम भूले हो, और अगर तुम यू फॉरगॉट समथिंग और ऐसा कुछ हो रहा है तो सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम भूले हो। ओके, लोगों के हिसाब से वो एक पॉज हो सकता है, ठीक है, कि तुम एक बड़ा पॉज ले रहे हो, कोई सीन नहीं है, यू रिकलेक्ट योर थॉट्स फॉर 2 सेकंड्स। और अगर थोड़ा ज्यादा होता है सो बी ऑनेस्ट कि अरे यार शिट, मैं भूल ही गया इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना था। खैर कोई इशू नहीं है, कहाँ पे था मैं, यही किया मैंने तुम लोगों के साथ, कहाँ पे था मैं। तो इससे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस एक्चुअली सुन रही है कि नहीं, और तुम्हें भी पता चल जाएगा तुम देगा ये 50 में से कोई एक तो सुन ही रहा होगा, और लोगों को अच्छा लगता है बताना सर आप यहाँ थे। हाँ बोलो। मेक इट अ स्विच लाइक ऑफ थिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ऑनेस्ट होके, एंड देन उस चीज को इतना ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करना है, एक सेकंड के लिए कर लो क्योंकि सबको दिख रहा है कि तुम भूल गए या तुम रुक गए हो, तो एक्नॉलेज करो, भागो मत उससे, ऐसा हुआ बट देन लेट्स यार कहाँ पे था मैं, क्या बोल रहा था, ओके, एंड देन कम टू इट लाइक दैट। तो मजे लिया करो कि उसके बाद फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि भाई मजा आ गया, ऐसे डॉज कर लिए बुलेट मैंने, सो इट मेक्स यू फील गुड और मजा भी आता है। दैट्स व्हाट यू कैन डू। ओके, यस, एनीवन? Those were really amazing questions, Akshita. Sir, I would Yes. like to say something. यस खुशी? So being an introvert doesn't mean that a person is not a good public speaker. आपकी आवाज कट रही है खुशी, एक बार फिर से। Sir, I would like to say something that being an introvert doesn't mean that the person is not a good public speaker. Yes, introverts can be amazing public speakers, Kushi, to be honest. And I have seen people जो कि normally कम बात करते हैं, but when they are on stage, they talk about something which they love. और जब इंसान किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है, so they automatically become so much passionate about their subject. तो पब्लिक स्पीकिंग में तो मैं खुद लोहा मानता हूं कि मुझसे ज्यादा इंट्रोवर्ट अच्छा बोलते हैं, बिकॉज अगर मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूं तो मैं ज्यादा बात करता हूं, ठीक है, और जब ज्यादा बात करता हूं तो बातें तेज हो जाती हैं। बट व्हेन एन इंट्रोवर्ट इज टॉकिंग दे आर सो काम, उनके कलेक्टिव पॉजेस बहुत अच्छे होते हैं, सो दे कम आउट एज अमेजिंग स्पीकर्स। तो कुछ लोगों के मिथ्स होते हैं कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। यू गाइस आर एन अमेजिंग स्पीकर्स एट दैट। बट वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस में कभी ना कभी यू गाइस गिव योरसेल्फ कि हाँ ऐसा हो जाता है इसलिए मैं नहीं करता हूं, तो उस मेंटालिटी से बाहर आना है, बस दैट्स इट। I use that term फट्टू because I want कि एक बार हिट करे और तुम सोचो उसके बारे में, उसके बाद आगे बढ़ो। So that was the main reason of it. Public speaking में it is true. हाँ जी। any guidance for MUNs and all this stuff, the competition जो भी हो रहे हैं अभी? गाइडेंस तो यार देखो मैं ना उसके लिए तुम्हें नहीं दे सकता ये गाइडेंस क्या है, बट व्हाट आई विल जस्ट से इज जस्ट गो एंड परफॉर्म एज मच एज यू कैन। इतना ज्यादा परफेक्शन के लिए मत देखो, एक्सपीरियंस ज्यादा ले लो। व्हेन यू विल हैव द एक्सपीरियंस तुम फेमिलियर हो जाओ कि हाँ मुझे बात करना है। अब MUNs आर वेरी फॉर्मल टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की मैंने यहाँ पे बात की वैसे तुम MUNs में नहीं कर सकते। सो आई नो कि मेरी ऑडियंस कौन है और मैं किसके साथ अच्छा कर सकता हूँ। आई एम नॉट दैट गुड एट फॉर्मल इंट्रोडक्शंस एंड एवरीथिंग, तो मैं उन चीजों में जाता भी नहीं। बट व्हेन देयर इज MUN तुम स्पीकिंग के एक्सपीरियंस के लिए वहां पे जा सकते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो बस जाओ, परफॉर्म करो, रिसर्च द बेस्ट कंटेंट दैट यू कैन और प्रेजेंट इट टू देम। और जो मैंने बोला था थोड़ा काम कंपोज्ड होके, टेक पॉजेस, टेक समवेयर जहां पे आप इंटरेस्ट बना सको अपनी ऑडियंस का। Okay. So I have a personal question. हाँ जी, Like you told हाँ about जी, एक content. सेकंड यार, यार आप लोगों को दिख रहा हूँ मैं अच्छे से? Yes, sir. अच्छा नहीं, एक्चुअली अचानक से सबके कैमरास ऑफ हो गया, तो मेरा नेटवर्क कनेक्शन का इशू है क्या? हाँ अब ठीक है, अब ठीक Fine, sir. है, It's fine. ओके, यस प्लीज। So you said that get a content from somewhere. So like I was reading a book, Think and Grow Rich. It was very good. Means a lot of good content was there. But then I don't know how to put it in front of others. ओके, देखो एक चीज समझ लो कि तुम्हें कैसा कंटेंट उठाना है। जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे, तो अभी भी करते होगे, बट जब बचपन में अपन बहुत अच्छे से करते थे, तब जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ आता था, रिमेंबर वी वर लाइक ओ अच्छा ये ऐसे बनता है, ओके आई गॉट इट, लाइक क्या बोलते हैं, यूरेका मोमेंट, आहा, ऐसा जो अपन बोलते हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट कंटेंट एंड प्रेजेंट इट टू योर ऑडियंस। आज मैंने तुम्हें जितने भी पॉइंटर्स बताए उन सब में कहीं ना कहीं एक यूरेका मोमेंट था। यू आर लाइक ओह पावर ऑफ 3, अच्छा एंटरटेनमेंट, अरे गांधी जी की थी। सो यू हैड दोस रेफरेंस पॉइंट्स एंड लाइक अच्छा हाँ। सो यही चीजें तुम्हें लगातार अपनी ऑडियंस को देनी, दैट दे शुड बी लाइक शिट ब्रो, 1 घंटे में इतने यूरेका मोमेंट्स तो कहीं नहीं मिले। एंड दैट इज व्हाट योर गोल शुड बी। क्या कंटेंट उससे उठाना है जो देख के तुम्हें लगे कि ओ हाँ यार ये तो लोगों को पता ही नहीं है,
इस तरीके से अगर उन्हें पता चलेगा दे विल हैव, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे. सो ऐसा ही कंटेंट उठाना है कि लोग उसको समझ पाए अच्छे तरीके से एंड देन प्रेजेंट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. तो ये एक चीज आप कर सकते हो बढ़िया से. Thank you, sir, for that one. And if anyone else You're have welcome, you're any welcome. question, any other question, they can हाँ जी, ask. इट्स जस्ट द, हाँ जी, एक आखिरी 5 मिनट है मेरे पास, फिर मेरा भी एक 8:30 को सेशन है, तो Sir, I खाना खा have के फिर मैं उधर लगूंगा. सो इफ यू कैन जस्ट आस्क एनी लास्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. हाँ जी खुशी प्लीज. यार थोड़ा नेटवर्क का इशू है क्या मुझे? we should always create a positive, so we should always create a positive visualization before going on stage, right? Sir, am I audible? Sir, so यस यू आर like I ऑडिबल. want यार to मेरा share थोड़ा आई थिंक नेटवर्क इशू. like when I was हाँ Sir, like in my school time when I went on a हेलो. debate competition, I was motivating myself internally, but like the moment I stepped on stage and like I started trembling. So how can I avoid that? Like it happens automatically without my control. ठीक है, देखो इसके पीछे ना कुछ रीजंस होते हैं कि तुम्हारी बॉडी पे जब ऑक्सीजन कम होता है ना, तुम्हारी बॉडी पे जब ऑक्सीजन कम होता है तो तुम्हारे हाथ और पैर थोड़े कांपने लगते हैं. ओके, नाउ हाउ कैन यू वर्क ऑन इट? एक सिंपल सी चीज है दैट इज नोन एज डीप ब्रीदिंग. स्टेज पे जाने के पहले बस एक काम बहुत बार करना कि सांस दबा के ले लेना भर भर के, मतलब एकदम अच्छे से. बिकॉज कोविड के टाइम्स पे क्या होता था, पीपल डिडंट हैव ऑक्सीजन, नहीं होता था, ऑक्सीजन की कमी थी. तो क्या होता है व्हेन यू आर ऑन स्टेज, तो मैंने बोला था ना फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, या तो तुम भागोगे या तो तुम बोलोगे. तो तुम्हारा बॉडी तुम्हारे भागने के लिए रेडी करता है. ठीक है, अब भागने के लिए ऑक्सीजन मसल्स में चाहिए कि दिमाग में? मसल्स में चाहिए होगी, तो वो पूरा ऑक्सीजन तुम्हारे मसल्स पे भेजता है. ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो हाथ कांपने लगते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कम जाता है तो स्टेज पे जाते ही थोड़ा भूलने नहीं लगते हो तुम, तुम्हारे दिमाग से चीजें गायब नहीं हो लगती हैं. दैट इज द रीजन व्हाई दैट हैपेंस. तो ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे कम और यहाँ पे ज्यादा, इसलिए हाथ पे पसीना आने लगता है, इसलिए हाथ पैर कांपने लगते हैं. तो एक बार ब्रीथ वेरी वेल बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, विजुअलाइज ए पॉजिटिव आउटकम जैसा मैंने आपको बोला, और अपना पूरा फोकस ऑडियंस पे रखना, पूरा फोकस. अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपका सवाल अच्छे से सुन रहा हूं, एक सेकंड सोच रहा हूं और फिर उस पर जवाब दे रहा हूं. अगर मैं इसी में अपने बारे में सोच रहा हूं कि यार मैं बैठा कैसे, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मेरे पे लाइटिंग ठीक है कि नहीं, तो मेरा ध्यान कहां जा रहा है? खुद पे. जब खुद पे जाएगा तो मुझे गलत चीजें होंगी भी नहीं तो भी दिखेंगी कि अरे यार ये स्ट्रैंड निकला हुआ है, इससे गलत दिख रहा होगा लोगों को. समझ रहे हो? सो ऑल ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन योर ऑडियंस, कि मेरी ऑडियंस को मजा आ रहा है कि नहीं. एंड इफ 100% फोकस वहां है तो 1% भी तुम पे होगा नहीं, सो यू वोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट मच. तो अपने आप को फ्रेम से निकाल दो, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट एज अ स्पीकर, दैट्स इट. तुम मैटर ही नहीं करते. गलत. मैं चाहे बनियान बरमुडा पहन के जाऊं ऑडियंस के आगे, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, बिकॉज मुझे पता है कि जो मेरे पास है ना वो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा. तो व्हेन यू फोकस ऑन योर ऑडियंस, तुम पे ध्यान नहीं रहेगा, देन ऑल्सो यू कैन डू सो मच बेटर. तो ये कोई चीजें दिमाग में नहीं आएंगी. तो डीप ब्रीदिंग एक बार देख लेना बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, गूगल पे सर्च करना, यू विल फाइंड वेरियस वेज हाउ टू डू दैट. ठीक है Sir, that was fantastic. That was indeed an awesome session. Your tips on fearless public speaking, they were very realistic. And I know that everyone present here will follow that tips. I thank all the joiners who are here to thrive and grow in life. Rather, they are here to survive as well. And I thank you, sir, for this very wonderful information. Words You're are welcome. really short to describe you, sir. You're welcome, guys. You're welcome. Thank you so much, and I hope you guys also had fun. जैसे दूसरे वेबिनार्स होते थे उस तरह नहीं था. It was something different to learn and everything. तो एक बार चैट सेक्शन पे जरा बताओ, थोड़ा मुझे अपने बारे में अच्छा फील कराओ. नहीं राइट, नहीं बस मुझे यही देखना है. सो हाँ बोलो Words are please. short to describe you, sir. Words are short. Thank you Yogesh, thank you so much. As I told you guys, okay, 10 number दे रहे हो जैन कि क्या कुछ. Okay, thank you. So as I told you guys, एक बार go to the Instagram page, link in bio में there is a course, go sign up for it. 2 घंटे का है, you can complete it in one sitting also, बहुत अच्छे से. That was take away from the webinar. Thank you, amazing, great session. चलो अच्छा लगा guys सुन के. कोई भी इशू रहे text me on Instagram, I will help you as much as I can. कोई भैया की तरह समझा गया. थैंक यू जीतू भैया. जीतू भैया की कमी तुम्हारी पूरी हो गई यहाँ पे. ठीक है, सो मुझे डीएम करना, मजा आएगा. कोई भी क्वेश्चन रहे एंड बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ माय वेबिनार्स, कोई आगे आएगा, सो मेक श्योर यू साइन अप फॉर इट. वहां पे मिलेंगे अपन. ठीक है,
Thanks, sir. Thanks a So lot. can you guys. so can you Thank you so please much. so can you You're welcome. please help me finding some offline live sessions with you? ऑफलाइन कहाँ पे रहते हो आप अक्षिता? I'll join wherever the session going on. I'll join you. ठीक है, आप मुझे एक बार डीएम करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? कोच अमन Thank you शुक्ला। so much, sir. And have a session with you in LPU as well, with more हाँ यार, audience. करवाओ भाई, करवाओ, मजा आएगा। लाइव करवाओ, Yes. बिकॉज लाइव की तो चाहिए यार। ऑनलाइन कर करके मैं थक चुका हूँ भाई। अपने घर पे बैठा रहता और रिंग लाइट चालू करके सामने वेबिनार लेके चला जाता हूँ। है नीचे चाहे मैंने आधा बरमुडा पहना हो, लेकिन सामने बैठ के तो फील आती है, लेकिन उतनी नहीं आती है। तो थोड़ा बताओ, कुछ जुगाड़ करो, ठीक है, कि मजा आए थोड़ा। Next semester you will be going for offline classes, then surely we will be having some offline sessions as well, and we will be inviting you definitely. डेफिनेटली लिख रहा हूँ मैं, फिर प्रांजल भल्ला नाम याद रहेगा मुझे, ठीक है? Yes. चलो ठीक है। अगर I'll आपका be- जलंधर में कुछ इवेंट हो रहा भैया हो, I will invite you soon in my ठीक है, organization definitely. बिल्कुल भाई, जब हो जहां हो बुलाओ मुझे। मुझे बात करना पसंद है, मैं बात करता रहूंगा। अच्छी बातें लगेंगी तो उसको समझ लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना, एंड I'd love to do that। कब चालू होगा तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर? Definitely भैया। January. January. जनवरी में। ओके, जनवरी, ठीक है, कोई सीन नहीं। मेरी अभी सिस्टर का, उसका भी एलपीयू में इस बार उसने लिया, आई थिंक एग्रीकल्चर वाले में कुछ है, तो वो भी शायद, तो अगर ऑफलाइन चालू होंगे तो जनवरी से ही स्टार्ट होंगे ऐसा? अभी भी चल रही है, बट अभी जा नहीं रहे हैं बच्चे, तो अभी नेक्स्ट अभी गए हुए हैं, बट सारे नहीं गए, तो जनवरी से भी जाएंगे कुछ, बट ऑप्शन तब भी होगी ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है। मेक श्योर मुझे बताना जरूर। I'd love to come। घर से तो बाहर निकलने मिले, कहीं भी बुला ले तुम लोग मुझे, कोई सीन है ना? ठीक है, चलो गाइस, इट वाज अमेजिंग टू हैव यू गाइस हियर, एंड शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के Thank लिए। you so much I भैया। had so much fun। आयुष, थैंक यू ब्रो फॉर हैविंग मी। टेक केयर गाइस, बाय बाय। Thank you बाय sir. गाइस, Thank you, sir. बाय गाइस। Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you so much sir. Thank you, sir.